Good evening, everybody. Good evening. Some more members are expected to join. Now 25 members have already joined in. So we'll start the program. So as a formality, I like to welcome all the participants who are joined in this today's webinar. I like to welcome our rather we can say he's a chief speaker, guest speaker, rather he's a member from Ghaziabad, Bhupen Pratap Singh. He's very good in speaking, so I am sure we'll be benefited after listening him. Actually, today, Regional Manager of Central Bank of India, Mr. Anupam Kumar, was supposed to be the chief guest. But his meeting was there. It was started from 2 to 4, but the meeting has been extended, so that's why he could not join. So I like to give a small introduction of him. He had joined in Central Bank of India in 1993, and then he worked as AGM Zonal Audit Office in Patna, and from December 2024, he is the regional head of Kanpur. डॉक्टर साहब ऑडिबल नहीं है सर डॉक्टर साहब ऑडिबल नहीं है Lucky Bharat. क्लियर नहीं आ रहा All of you. Now I think I am audible. Hello. यस सर यस सर यस सर So today actually regional head of Central Bank of India was supposed to be the chief guest, but due to his urgent meeting he could not join. Rather his DRM, Mr. Arvind Kumar will join us. He had also joined. So RM Saab had joined in 1993 in Central Bank of India. Then after that he had working as the AGM Zonal Audit Office in Patna, and now from December 2024 he is working as a regional head in Kanpur. He's very nice person, but he has said sorry for this because due to urgent meeting of their bank he could not join. Very good behavior. Last moment he requested his DRM to work as a guest of honor. So this is an honor for all of us that in spite of busy schedule he could not join, and rather for his substitute he has given his deputy regional manager who has also joined us. Now our speaker Bhupen Singh ji, he's our very good member of our association. He's also very good lecturer. I'm sure from this topic, diminishing valuation fees, a result of fake valuation reports, will be beneficial for all of us and also for the bankers also. Now what happens during working, we are not following ethics, and for that valuers are responsible as well as the bankers also. Now, yesterday night at 11 o'clock, 11 p.m., I got a message and through WhatsApp, one valuation somebody had posted, and the rate of the flat had been taken to 19,000 per square feet. Actually, today morning I discussed all things. I was expecting from 7,000 rupees, but rather I came to know that in that area, the area is somewhere far away from me. That is 6,000 per square feet, the prevailing market rate. That means we are taking 3 times more than that. So what happens? The system has changed and the bank has to be aware about it. Bank, instead of alerting the work to the local valuers, he is engaging the valuers from other part of the other cities and even other states also. So that is creating a lot of problems which can be confirmed from these reports. Now 19,000 rupees and 6,000 rupees, that 3 times GD difference. So I would like, through these discussions, I would like to request the bank authority to avoid these fake valuations and bad practice of valuations. They should adapt to the renowned valuers, services of renowned valuers or the local valuers also. So that is to be taken care of, and association will doing all these things for the benefit of the members as well as bankers. And this webinar, we generally plan to train not only to the valuers members but also to the bankers also, so that we can get updated. So for that, we had Bhupen Singh ji had suggested this topic, and we agreed both that this topic will be beneficial for all of us. So now I'd like to request our Vice President, Sri M.K. Srivastava ji, to introduce our guest of honor, Sri Arvind Kumar. He is the DRM of Kanpur Central Bank of India. M.K. Srivastava ji, please. Thank you, Darji. Good evening to all the members who have joined.
The brief introduction of our Deputy Regional Head, Central Bank of India, Mr. Arvinda Kumar, is as follows. He joined Central Bank of India as PO in 2011. He got his first posting in Jorhat, Assam. Thereafter, his second posting was in Patna region. Third posting he got was in Mumbai zone in 2017. He worked as branch head of Prabha Devi of South Mumbai region and branch head of Thane East, Vasant Vihar branches of Thane region. Then he was posted as LDM, Lead District Manager of Balia District, UP. Then he was posted to Kanpur Regional Office and presently working and dealing operation, credit monitoring, recovery, rural department. He has been given his services for more than 15 years. So he has very vast experience. So it is a brief resume of our Deputy Regional Head, who is our guest of honor today. Thank you. I would like to welcome DRM sir. Within short notice, actually at the last moment also, RM sir was supposed to join, but last moment the program has changed. So now I would like to request Arvind Kumar sir, DRM, Central Bank of India, to speak something to us. DRM sir, please. Thank you very much, sir. Swasta sir and Daftar, thank you very much. Good evening, respected office bearers of All India Valuer Association, Engineer Sri Sir, President, Engineer Sri M.K. Srivastava sir, Vice President, Engineer Sri Anand Singh sir, Vice President, and Engineer Sri Lalit Kant Mishra sir, Officiating General Secretary, and all the members of the Valuers Association and distinguished guests. Now, on the outset, I would like to say that indeed this is a profound privilege for me to man such a nice and wonderful gathering of vast experienced professionals, and this is a unique chance for me to be hobnob with all of you. Now I sincerely thank the association. I got the opportunity since our regional head is busy today with some urgent meeting with the high office. Now I would like to say that as a banker, we like to heavily on valuers assessment, which influences our loan proposition, our loan lending process. Now in every property-backed loan, whether it's a housing or MSME or project finance, this heavily depends on your opinion. Nowadays, as far as the valuer's role is concerned, it's not a technical knowledge, but it's a integrity and responsibility also from the both sides. It's a mutual thing. Now, MSME is no longer limited to site visits or reports. Now it is increasingly supported by technology and data analytics, digital records also. Because most of the states, things have been online land records and online, all the details have been made by the government online. So this is how somewhat easy and due diligence is also being followed. Now, as a banker, we are confident that with professionalism and cooperation, we can meet our own challenges, whichever is within our case, by the mutual respect and mutual help, with all following all ethical standards. And so, I am very much thankful to this association for letting me join and letting me speak. Now I will extend my sincere thanks to Daftar and all the committee members. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. I am very much thankful to our DRM sir.
Actually, within short notice, he had joined us. Due to the busy schedule of RM Saab, he was supposed to join after committee meeting. Good evening, sir. Good evening, sir. Bharat, you should Can you hear me, sir? Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग. सर मैं इसलिए फोन किया कि ये जो साउंड आ रहा है सर बहुत डिस्टर्ब है सर. क्लैरिटी के साथ ये साउंड नहीं आ रहा है. साउंड क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहा है सर. इसलिए मैं डिस्टर्ब किया बीच में सर. सॉरी फॉर दैट. हेलो. हाँ जी. तो सर सुन पाए मैं जो बोला कि सर ये क्लैरिटी के साथ वॉइस नहीं आ रहा है सर. नहीं, अभी तो आ रहा है ना. अभी आ रहा है सर. जी. बीच अभी आ रहा है. जी सर. अभी आ रहा है. नेक्स्ट टर्म इज आवर चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स इंडिया कानपुर सेंटर, Raghunath Singh, but he is also busy in meeting. So our honorary secretary of Institute of Engineers, Sri Srivastav, is joining in place of him. So I like to welcome Mr. Srivastav, who is the secretary of Institute of Engineers India Kanpur, and would like to request him to say a few words to us. Mr. Srivastav, Secretary Institute of Engineers, please. Institute of Engineers. He is honorary secretary of the Institution of Engineers. I welcome our chief guest, our committee members of the All India Valuer Association, and who today's discussion will be important and priceless to all the valuers, and hope today's seminar will be good seminar. Okay, over to Dasha. एक्चुअली अभी आज शादी का टाइम है ना सर, सब लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं. नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट सुजाता विश्वास फ्रॉम जयपुर. ही विल इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट स्पीकर. सुजाता विश्वास प्लीज. हाँ जी सर, नमस्कार सर. गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, ऑल ऑनरेबल मेंबर्स एंड आवर गेस्ट स्पीकर श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह जी. उनके बारे में जितना बोला जाए और जितना लिखा जाए उतना ही कम है. इनफैक्ट आई ओनली नो हिम एज फॉर हिज राइटिंग्स एंड फ्रॉम द फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्चुअली. बट जब दास साहब ने मेरे को आज इनके इंट्रोडक्शन के लिए कहा तो आई रेड कंप्लीटली अबाउट हिम. आई वाज अम्यूज्ड. तो मैंने सोचा शॉर्ट में बताया जाए, क्योंकि बोलने जाऊंगा तो पूरा सेमिनार के टाइम ही खत्म हो जाएगा. बेसिकली ही इज बेस्ड एट Ghaziabad, practice in Ghaziabad, and basically simultaneously he is a esteemed valuer as well as academician also. The most notable part of his credential is that he is a professional member of the RICS, that is a esteemed world body of valuers in the world, that is Royal Institute of Chartered Surveyors. Other than that, he has also given consultancy to different nationalized banks, public sector undertakings, as well as a good writer, as well as a paper setter for several institutes and the exams, international exams also. Notably, his credentials has got a good marks that Delhi government has asked him for a special session for the first revision of the Delhi Circular, which is chaired by the then Honorable Chief Minister of Delhi. Other than that, he has been quoted by different national newspapers as well as TV. Other than that, his writings are there in different journals, newspapers, magazines, as well as he is active in social groups. Thank you very much. I will not take much time. Let me introduce him for his seminar topic, that is diminishing valuation fees, a result of paid valuation. Thank you very much, sir. VP Singh sir. Now I like to welcome Bhupendra Pratap Singh ji. He is not only our member, but on this platform he has spoken in several times.
So I am sure, like previous times, he will give a very light to us so that we can gain something from him. Please, Bhupen Pratap ji. Good evening, the chief guest, all office bearers and my friends. विश्वास सर ने तो मेरे बारे में काफी अच्छा बोल दिया. मैं भी एक वैल्यूअर हूँ, प्रैक्टिसिंग वैल्यूअर आप सभी लोगों जैसा, और अपनी वैल्यूएशन में सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता हूँ. बहुत टेक्नोलॉजी और बहुत टेक्निकल नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये मानना है वैल्यूएशन हमारी हर एक्टिविटी का, ये ह्यूमन एक्टिविटी का इंटीग्रल पार्ट है. हम हर समय वैल्यूएशन करते हैं. वाई हम एक टैक्सी राइड लेते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं, हम ओला करें, उबर करें, क्या करें. इवन व्हेनेवर हम कुछ भी बाई करते हैं या कोई रूट अडॉप्ट करते हैं कहीं जाने के लिए, इमीडिएटली हम दिमाग में प्रोसेस करते हैं कि क्या हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा. तो वैल्यूएशन तो एक इंटीग्रल पार्ट है और एक कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है. तो मैं ज्यादातर कॉमन, और मैं समझता हूँ हम जो बैंक के लिए वैल्यूएशन करते हैं इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है. हम 4 लोगों को प्रोब करते हैं वैल्यू के बारे में और ये जज करते हैं व्हाट कुड बी द करेक्ट ओपिनियन. जो हमने 4 लोगों से पूछा इसमें किसका ओपिनियन सही है और क्यों है, और फिर हम अपना कंक्लूजन दे देते हैं. सो हमारा आज का सब्जेक्ट है डिमिनिशिंग वैल्यूएशन फीस. लेकिन सिमिलर हमने फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स पे कुछ समय पहले एक आर्टिकल लिखा था. वो आर्टिकल पब्लिश हुआ था किसी प्रोफेशनल जर्नल में. तो अभी रिसेंटली 29 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने मुझे इनवाइट किया था डिस्कशन के लिए. डायरेक्टर बैंकिंग IAS मिस्टर RC ठाकुर, 29 दिसंबर को. तो ये सब्जेक्ट तो उन्होंने टेकअप कर लिया है, लेकिन उन्होंने बैंकिंग पर्सपेक्टिव से टेकअप किया कि वहां बैंकर्स को क्या मुश्किल हो सकती है, ये फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं क्या, और बैंकर्स को क्या मुश्किल हो सकती है. और शायद उन्होंने अभी IBS इस पे फीडबैक मांगा है. लेकिन हम वैल्यूअर्स को फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरी समझ से हमारी फीस कंटिन्यूअस जो घटती जा रही है उसके पीछे कारण फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स ही हैं. तो मैं इसके पे बोलूंगा. मेरा जो प्रेजेंटेशन है मैं शुरू करता हूँ. स्क्रीन तो मेरी शेयर्ड है ना, मैं समझता हूँ ये स्क्रीन शेयर्ड है ना सबके साथ. हेलो, हाँ जी, शेयर है. यस सर. ओके, गुड. एक्चुअली हमने ऑब्जर्व किया कि हम लोग की फीस लगातार, एक्चुअली जब मैं इस प्रोफेशन में काफी मुझे लगता है, अदरवाइज तो मैं 1982 से वैल्यूएशन के प्रोफेशन में हूँ. पहले मैं CPWD में था, तो इनकम टैक्स वैल्यूएशन सेल के लिए कुछ दिनों के लिए मैं अटैच था. उसके बाद मैं स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में था, तो वहां पे तो हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल का ही काम था, वैल्यूएशन करना, TVs करना और वैल्यूएशन करना. लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मैं बैंक्स के लिए मॉर्गेज वैल्यूएशन का काम 2008 से कर रहा हूँ. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 2008 में जो हमारी फीस थी कुछ बैंकों के साथ, आज वही बैंक उसका 10% देने में भी दिक्कत कर रहे हैं. यानी कि 2008 कितने साल हुए, 18 ईयर्स पहले जो मैं फीस पाता था, आज उसका 10% देने में बैंकर्स दिक्कत करना. कहते हैं कि सब हमारे पास अवेलेबल है वैल्यूअर्स जो उसके 10% पे कर रहे हैं. और एक्चुअली है क्या, बैंकर्स के पास भी उनको भी बारोअर्स की तरफ से प्रेशर है कि हमारी कॉस्ट को कम करिए. और आज बैंकर्स भी कंपटीशन में है. दे आर आल्सो सर्विस प्रोवाइडर लाइक अस. जैसे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, तो उनको भी कम्पीट करना है. उनके ऊपर उनके कस्टमर्स का, उनके क्लाइंट्स का प्रेशर है कि आप जो है अपनी कॉस्ट को कम करिए, जो एंसिलरी कॉस्ट है उसको कम करिए. और उसके साथ ही फिर लो कॉस्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स की शुरुआत हुई. और उसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न हमारा है कि जो फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स है वही हमको लगता है डिक्लाइनिंग जो फीस है वो उसका कॉज है, रीजन है.
एक्चुअली इनका इमरजेंस कैसे हुआ फेक प्रोडक्ट्स का? जेन्युइन प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जेन्युइन है क्योंकि एक रीजनेबल कॉस्ट है, लेकिन कंज्यूमर हमेशा चाहता है कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव, वो सस्ती चीज चाहता है। और यहीं पे बड़ी थिन लाइन है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स की प्राइस अच्छी खासी है और कंज्यूमर चाहता है एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव, और वहीं पे वो गलती से अनजाने में ये फेक प्रोडक्ट्स के चक्कर में फंस जाता है और उसकी जो चाहत है कम प्राइस की चीज पाने की, वहां पे अनस्क्रूपुलस सप्लायर्स इसका फायदा उठाते हैं, वो मार्केट में आ जाते हैं और उसके साथ ही काउंटरफीट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो है शुरुआत होती है। और ये वैल्यूएशन में भी हर जगह काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं। इसका प्रोडक्ट्स में अगर आप देखें, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में तो नकली दवाएं बन रही हैं सस्ते के चक्कर में, स्मार्टफोन, हर तरह के प्रोडक्ट्स में ये चीजें आ चुकी हैं। हमारा कंज्यूमर की चीजों को सस्ता पाने की इच्छा से काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बनाने वालों ने मार्केट में जो है उनको एल्योर किया, और चूंकि काउंटरफीट प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में प्राइस में काफी डिफरेंस है, तो लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित होकर के उन सर्विसेज को लेना शुरू कर दे रहे हैं। और उससे हो क्या रहा है, फिर काउंटरफीट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सर्विसेज आ रही है और प्राइसेस लगातार गिरती चली जा रही है। काउंटरफीटिंग इज नो लॉन्गर लिमिटेड, हाँ मतलब काउंटरफीटिंग जो है नकली प्रोडक्ट बनाने का काम सिर्फ गुड्स तक ही नहीं रह गया है, अभी सर्विसेज में भी आ गया है। और खाली हमारी सर्विस में नहीं है, जैसे मेडिकल में आज फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, जो जहाँ पे इवन जो सर्विसेज में लोग आ रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट्स जहाँ सब जरूरत हो रही है वहाँ फेक सर्टिफिकेट्स भी हैं। इवन अकाउंटिंग में बैलेंस शीट्स वगैरह नकली बन करके लोग प्रपोजल्स लोग के साथ सबमिट कर रहे हैं। तो हमारी सर्विसेज भी मतलब वैल्यूएशन में भी इस तरह की सर्विसेज शुरू हो गई हैं। और इस समय सिर्फ लोअर फीस जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई सबके लिए, बैंकों के लिए। देयर क्वालिटी तक नहीं जा रहे हैं, उनको सिर्फ चाहिए कि हमसे कम फीस में सर्विस कहाँ मिल रही है, अंडर प्रेशर ऑफ देयर बारोवर्स। Sir, but what is the solution? सोल्यूशन बाद में, सबसे बाद में है, उसका कंक्लूजन है, सब सोल्यूशन सबसे बाद में है। अभी कैसे एक्सपैंड हो रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है, Sir, that everybody knows what is going on. मनोज सोल्यूशन ओपन डिस्कशन में आएगी वो सबसे बाद में है। यही डिस्कशन मैंने बताया ना कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर बैंकिंग से डिस्कशन हुआ है, उनको हमने जो सजेस्ट किया है वो क्या करेंगे तो उनको करना है, लेकिन जो सजेशन हमने दिया उनको हो सकता है विशेषज्ञ के थ्रू भी उस चीज को उनके सामने प्रेजेंट करें। एंड व्हाट इज फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट सर? अब हम इस पे आते हैं, जहां पे इंस्पेक्शन एक्चुअली क्या है, बैंक्स ने आईबीए और आरबीआई की मैंडेट पे एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और एक सर्टेन एक्सपीरियंस रखने वाले आदमी को ही अपने पैनल पे ले रखा है, और वो चाहते हैं कि वो वही व्यक्ति वैल्यूएशन का इंस्पेक्शन करे, अपनी रिपोर्ट दे, और उसके साथ साथ वो एक सर्टिफिकेट भी लेते हैं रिपोर्ट्स में कि वैल्यूएशन हमने खुद किया है, इंस्पेक्शन खुद किया है, आउटसोर्स नहीं किया है। और जहां पे ये काम अनक्वालिफाइड इनएलिजिबल रिप्रेजेंटेटिव से कराया जा रहा है, वो रिपोर्ट सारी की सारी फेक है, क्योंकि कंडीशन है कि क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड वैल्यूअर ही इंस्पेक्ट करके रिपोर्ट देगा। अगर वो नहीं दे रहा है और रिपोर्ट में मेंशन्ड है इट हैज बीन वैल्यूड बाय आवर एम्प्लॉय और रिप्रेजेंटेटिव विदाउट मेंशनिंग हिज क्वालिफिकेशन, इवन क्वालिफिकेशन में मेंशनिंग तब भी वो फेक ही है, क्योंकि ऑथराइज्ड सर्विस एक्ट में बैंकों का
एक नॉर्म है, स्पेसिफिक नॉर्म्स है कि सरफेसी में जो भी एक्शन लेगा एक ऑथराइज ऑफिसर लेगा, और ऑथराइज ऑफिसर चीफ मैनेजर अबव लेवल का एक ऑफिशियल होना चाहिए. ही कैन नॉट आउटसोर्स हिज जॉब टू हिज सीनियर मैनेजर. वो सीनियर मैनेजर को भी आउटसोर्स नहीं कर सकता है नोटिस इशू करना या पोजीशन लेना. अगर सीनियर बैंक का सीनियर मैनेजर भी जाकर के ये एक्शन लेता है तो स्क्रैप हो जाएगा सारा का सारा एक्शन. सेम वे में जब ये चीज ऑथोराइज किया गया कि क्वालिफाइड वैल्यूअर ही खुद इंस्पेक्ट करेगा और सर्टिफिकेट अगर हमने वैल्यूएशन किया है तो वो अगर नहीं कर रहा है तो वो फेक रिपोर्ट है, या जहां पे फॉल्स डिक्लेरेशन है पर्सनल इंस्पेक्शन का. सो दोज आर फेक रिपोर्ट्स. और यही फेक और इसी चक्कर में फेक रिपोर्ट्स आ रही हैं क्योंकि अब आदमी खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहा वैल्यूएशन करना, फीस कम होती जा रही है, तो वो 10 एम्प्लॉय एक दिन में 10 इंस्पेक्शन कैसे कर सकता है. वो 10 इनएलिजिबल लोगों को अपॉइंट कर रहा है, फेक रिपोर्ट सबमिट कर रहा है. और कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है. जेन्युइन वैल्यूअर्स जो है हम लोग या जो भी जेन्युइन लोग हैं जो खुद कर रहे हैं वो प्रेस्क्राइब्ड फीस शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और फेक वैल्यूअर्स जो है इन प्राइसेस को कम कर रहे हैं अपने काम को इनएलिजिबल और अनक्वालिफाइड लोगों को आउटसोर्स करके, वॉल्यूम बढ़ा करके. और जहां पे इनएलिजिबल आदमी है तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रही है. और बैंक तो लोअर फीस हमेशा और धीरे धीरे कम हो रही है. उन्होंने कम ऑफर किया कंपटीशन में लाने के लिए, अपने बिजनेस को लेने के लिए. बैंक्स भी उनको इस ट्रैप में फंस रहे हैं लोअर फीस के लिए और फिर उनकी तरफ जा रहे हैं. और इससे हमारी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है वैल्यूअर्स की, जो इसको आउटसोर्स कर रहे हैं इनएलिजिबल आदमियों के द्वारा, और फीस भी वही कम कर रहे हैं. और ये जो इनअकोरेट जो बैंक पे इसका इम्पैक्ट है एसेट वैल्यूएशन पे, उनके लेंडिंग डिसीजन में आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सिक्योरिटी की वैल्यू है. और वही अगर कॉम्प्रोमाइज हो गई तो उनके लेंडिंग डिसीजन पे भी उसका बुरा असर पड़ने वाला है. और सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अगर इस तरह की रिपोर्ट जो वैल्यूअर ने खुद नहीं किया है और ये किसी से प्रूफ होता है कोर्ट में, अगर इस पे एनपीए में कोई एक्शन हुआ है और ये रिपोर्ट चैलेंज हो जाती है, जैसा फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे बैंक ने एक्शन लिया है या प्रॉपर्टी सेल की है, तो सारा का सारा प्रोसेस उनका स्क्रैप हो जाएगा और वो इस रिपोर्ट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे. क्योंकि जनरली इस तरह के वैल्यूअर्स अपनी सर्टिफिकेट में, अब तो खैर कुछ लोगों ने फॉल्स रिपोर्टिंग भी शुरू कर दी, वो लिख देते हैं कि हमने वैल्यू किया है, लेकिन बहुत से अभी भी ये लिखते हैं कि इट हैज बीन वैल्यूड बाय, अपने एम्प्लॉय का नाम लिख देते हैं, अवर रिप्रेजेंटेटिव. इफ दिस रिपोर्ट इज ऑन रिकॉर्ड तो बैंक अपने को डिफेंड नहीं कर पाएगा कोर्ट में या कहीं भी लीगल स्क्रूटनी हुई तो. और इस तरह से हमारे जो वैल्यूएशन प्रोफेशन का जो ट्रस्ट है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है लोगों पे, क्योंकि कोई भी आके कर रहा है. और इस पे रेगुलेटरी पोजीशन क्या है, आरबीआई ने मैंडेट कर रखा है क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड वैल्यूअर्स की वैल्यू करेंगे एसेट को. और बैंक्स ने भी अपने, बहुत सारे बैंक पब्लिक बैंक ने प्रोफार्मे में ये पर्सनल इंस्पेक्शन की कंडीशन डाल रखी है, और कुछ बैंकों ने तो जियो टैग्ड सेल्फी की डिमांड भी कर रहे हैं. लेकिन वहां पे कोई इस बात को नहीं चेक कर रहा कि जियो टैग सेल्फी में वो वैल्यूअर की फोटो है या किसकी फोटो है, लेकिन उन्होंने डिमांड कर रखी है. और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है क्योंकि इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है कि वैल्यूअर खुद कर रहा है या इनएलिजिबल आदमी उसका कर रहा है. और इसके पीछे सिर्फ फी बेस्ड कंपटीशन शुरू हो गया है, मतलब क्वालिटी की तरफ ध्यान देने के बजाय सिर्फ वो फी बेस्ड कंपटीशन है. बैंक कम से कम फीस चाह रहा है और उसके चक्कर में ये चीजें बढ़ती जा रही हैं. और
कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है फॉल्स डिक्लेरेशन पे कि अगर किसी ने फॉल्स डिक्लेयर कर रखा है, वैल्यूएशन नहीं किया और फॉल्स डिक्लेयर कर रखा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पेनल्टीज एंड इस मिसकंडक्ट पे कोई पेनल्टी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अगर इसको बैंक या रेगुलेटर्स इसको चेक करें किसी भी तरीके से कि सब सेल्फी अगर है तो वो किसकी है, या एक वैल्यूअर एक दिन में 20 वैल्यूएशंस कैसे साइन कर पा रहा फिजिकली, और कुछ वैल्यूअर्स ऐसे हैं जो बैठे हुए कटक में और रिपोर्ट साइन हो रही है दिल्ली की। इसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। और जो सजेशन जो मैंने जो डिपार्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज को दिया था, तो हमने तो ये कहा था कि आप इस पे मॉनिटरिंग करिए और जो डिजिटल एविडेंस है वैल्यूअर की, जियो टैग सेल्फी या फोटोग्राफ साइट पे जरूर लीजिए, तभी ये चेक हो पाएगा। जब चेक हो पाएगा तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर वर्क। एक आदमी जो 50 वर्क ले रहा है फास्टली फेक रिपोर्ट दे करके, फिर वो उतना नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा खुद आप करोगे, यू विल फाइट फॉर योर प्रॉपर फीस। तो फीस कम होने का जो कारण है ये फेक वैल्यूएशन रिपोर्टिंग है, और फिर स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल फीस का फ्रेमवर्क भी होना चाहिए सारे बैंकों का। और जो वैल्यूअर्स गलतियां कर रहे हैं, मन इस तरह की गलतियां कर रहे हैं या कोई भी गलती कर रहे हैं, कोई ना कोई पेनल्टी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फीस लेने के लिए बैठे हैं, ये इनके इन प्रकार में कोई अकाउंटेबिलिटी हमारी नहीं है। मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो बैंकर्स अभी हम बहुत चल रहा है इंडेमनिटी का या इन सारी चीजों का, इसके पीछे कारण क्या है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लोग फीस तो चाहते हैं लेकिन अकाउंटेबल नहीं होना चाहते हैं, मैक्सिमम वर्क करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि बैंकर्स जो है इंडेमनिटी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले भी रास्ते तो थे ही, अभी भी एक्शन तो हो ही रहे थे, लेकिन और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो फेक वैल्यूएशन जो है फीस को कम करने का सबसे बड़ा ड्राइवर है, और इसको रोकने के लिए बैंक, रेगुलेटर और हमारी वैल्यूअर्स एसोसिएशन को मिलकर काम करना होगा। हमारी एसोसिएशन डिफरेंट बैंकर्स को इस इशू को हाईलाइट करे। अब तो मैं कुछ बैंकों का स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग वगैरह के लिए बुलाया जाता है, मैं जाता हूं, तो उनको उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको इस बात को मैं स्पेसिफाई करता हूं, कहता हूं भैया आप रिपोर्ट लीजिए, आप इस बात को जरूर चेक करिए सर्टिफिकेट में कि हु हैज वैल्यूड इट। कम से कम एटलीस्ट अभी लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। हमने कुछ यहाँ पे गाजियाबाद के बैंकों में इस पॉइंट को रेज किया, कुछ रिपोर्ट्स पे हमसे कमेंट मांगा गया, हमसे एक वैल्यूएशन पास हुआ, कभी भी मांगा जाता है, वो शेयर करते हैं कि फलाना वैल्यूअर ने वैल्यूएशन कुछ दी है, आपने कुछ दी है। मैं कहता हूँ शेयर द वैल्यूएशन रिपोर्ट। अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट उन्होंने शेयर की और मैं देखता हूँ उसमें लिखा हुआ है कि दिस हैज बीन वैल्यूड बाय सच पर्सन, आई इमीडिएटली से दिस इज अ फेक रिपोर्ट, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद माय रिपोर्ट। उसका बैंकर्स जो है इमीडिएटली फिर उन्होंने हमसे कभी पूछा नहीं, और बल्कि अब उन वैल्यूज की मैं देख रहा हूँ रिपोर्ट्स में भी अब लिख के लगा इट हैज बीन वैल्यूड बाय मी। 1 मिनट सर। सॉरी। तो सबको हम लोग को मतलब कलेक्टिवली एफर्ट करना होगा, हमारे एसोसिएशन को भी लिखना होगा, हम सबको एजुकेट करना होगा, तभी इस चीज पे हम पार पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। और इस पे अगर कुछ और डिस्कशंस हो तो वी शुड डिस्कस नाउ। थैंक यू उपिन साहब। मैं ये जानना चाह रहा था इसका सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन तो मैंने बताया, इसका सोल्यूशन ये है कि हम बैंक, रेगुलेटर्स, जो भी रेगुलेटर्स हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं, इसमें कम से कम एक चीज ये सुनिश्चित करें कि वैल्यूअर जिसको वैल्यूएशन करना है, जो ऑथराइज किया गया है, वो वैल्यूएशन उसकी एक जियो टैग सेल्फी। सर देखिए, डोंट टेक इट अदरवाइज, सारे वैल्यूअर्स हैं जो भी काम करते हैं वो डोंट नो व्हाट
क्या कौन इंजीनियर काम करता, कौन इंजीनियर काम नहीं करता, आई डोंट ब्लेम एनीवन, बट एक वैल्यूअर सब जगह नहीं जा सकता। सपोज करिए वो अपने यहाँ इंजीनियर अपॉइंट करता है, जो इंजीनियर अपॉइंट करता है वो भी कॉम्पिटेंट होता है। इफ इज हैविंग एन अगर बैंक ने किसी एक पर्टिकुलर आदमी को उसके अनुभव के आधार पे, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे अपॉइंट किया है और वो चाहता है और आपसे मैंडेट एक सर्टिफिकेट ले रहा है कि आप ये सर्टिफाई करेंगे कि मैंने खुद वैल्यू की इंस्पेक्शन किया है, अगर हम नहीं कर रहे हैं वो फाल्स, हमने एथिक्स इमीडिएटली हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, करना के लिए कर रहे हैं और लिख दो हम नहीं किया है। सर वो वैल्यूअर लिख, सर जो किसी वैल्यूअर के अगर इंजीनियर है उसके पास बैचलर डिग्री है, वो भी तो कॉम्पिटेंट हुआ ना। वो ही इज बेटर देन द वैल्यूअर, लेकिन अगर वो सर्टिफाई कर रहा है कि मैंने किया है, नहीं वो पर्टिकुलर उसका नाम लिखेगा कि मिस्टर अभिजीत सिंह ने किया है, हु इज आल्सो। जब वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन बैंक के कह चुका है कि अभिजीत सिंह इज नॉट अ वैल्यूअर, वैल्यूअर इज द पर्सन कंसर्न, जिसको देख के, जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने उसको वैल्यू। सर लिसन माय वन पॉइंट, आई डोंट वांट टू डिस्कस टू मच मोर। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अरे सर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। नहीं सर एक बात बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके यहाँ भी सीएज अंडर में होते हैं, वो आर्टिकल ऑडिट करते हैं, साइन तो सीए करता है ना सर। ठीक बात है, सीए टेक्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट। यहाँ एथिक्स की बात ये कर रहा हूँ जी। आप बार-बार मनोज जी आप कह रहे हैं बार-बार कि इंजीनियर अपॉइंट किया है, बात हो रही है जिसने इंजीनियर अपॉइंट नहीं किया अपने यहाँ वो है। कई लोग ऐसे भी हैं, बात हो रही है कि जिन्होंने इंजीनियर अपॉइंट नहीं किया है। नहीं सर इज स्टिक टू दैट कि वैल्यूअर सेम वैल्यूअर शुड विजिट द प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल राइट नाउ। खैर होना ही चाहिए, That is possible मनोज जी, ये मनोज जी पॉसिबल है। आपने इंजीनियर अपॉइंट किया है तो इंजीनियर जाके आपकी मदद करेगा। आप साथ जाके देखिए आपको। अरे मनोज जी ऐसा है, आप बताइए, आपने कभी न कभी 100% किया ऑपरेट कहा है ना? हेलो, आपने डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो ऑपरेशन के लिए आप चाहते हैं कि कंपाउंडर ऑपरेशन करे या मेन डॉक्टर ऑपरेशन करे? ये मेरे को बताइए। You pay fees to the doctor. Don't compare it to the doctor. It is the same thing. क्यों? Why not? सेम चीज है। अगर कोई बैंक आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप डॉक्टर करें, उसको पर्सनली देखें, आप पर्सनली उसको देखें, और आप करें इंजीनियर देखने जाएगा। अरे आपको क्या मालूम है, डॉक्टर के पैनल में होता है जो ऑपरेशन, जिस टाइम ऑपरेशन हो रहा था कोई जरूरत होता कि मैंने डॉक्टर प्रसाद को अपॉइंट किया, डॉक्टर प्रसाद ने तो मेरा ऑपरेशन किया नहीं, उसके जूनियर ने किया। जिम्मेदार तो डॉक्टर होगा ना, तो जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं ना, हम क्या करें, जिम्मेदारी मैं लूंगा। जिम्मेदारी तो आपके ऊपर नहीं है, ये जनरल बात हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये तो बताइए आतोष जी, आप क्या लड़के काम नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे? जो सज्जन ये बात बता रहे थे उनके लड़के काम नहीं कर रहे, ये बताइए ना पहले आप। माय डियर सर, लेकिन वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप कह रहे हो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं आप जानते हो, किसका कैसे काम कर रहे हैं? अभी हेलो, अभी अपन डिसीजन थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर साहब अभी उनको जाना कहीं पे मीटिंग में, तो सर्टिफिकेट उनको प्रेजेंट कर ले, फिर हम लोग इसमें ज्वाइन करेंगे। तो अभी मैं हमारा डीआरएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा स्पीकर को सर्टिफिकेट पढ़ के सुना दें। दिस इज द वे ऑफ टोकन ऑफ थैंक्स टू आवर स्पीकर। डीआरएम सर प्लीज। Yes, sir. Thank you, sir. Now, as per instructions of this is to certify that one person has mic on. Please, mic. Okay, thank you.
So the certificate is this is to certify that Sri Bhupendra Kumar उनका नाम अरविंद है क्या? इनका बंद कर दो, अरविंद कुमार, अरविंद को खोलो। आवाज नहीं आ रही है। खुल गया। Sorry, I will read out again. This is to certify that Sri Bhupendra Pratap Singh has successfully contributed through his presentation on diminishing valuation fees, a result of fake valuation reports, in the technical webinar held on 7th of February 2026. On behalf of organizing committee, council, and Sri Anupam Wadwal, chief guest, regional head, regional office, Central Bank of India, Kanpur, I, Sri Arvind Kumar, guest of honor, deputy regional head, Central Bank of India, regional office, Kanpur, thankfully acknowledges the valuable support and wishes all success in future. Thank you, sir. Thank you, Diram sir. We are very much thankful to you for joining us, the guest of honor. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And wishing all of you continued success in your endeavors with the mutual help and mutual contributions. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, one request will be to you. Since we are discussing about the topic, so our association would like to request that you choose the valuers, local valuers for giving alerting. Now, today yesterday night we are discussing one flat, the rate of flat, the valuer from Lucknow had taken 19,000 rupees. Or practically this is 6,000 rupees per square feet. So bank is itself committing the mistake. The number one, actually I was supposed to talk, just I'll take 2 minutes from you. Whatever problems is creating, we are facing, so that is number one reason is the policy of the bank. The bank authority is not implementing the valuers zonal wise or region wise. He is doing corporate wise. So corporate sector has started only due to the policy of the banks. Number two, what happens? Now the system has started. The pupils are collecting document in the morning and in the night they are giving the report. That is not possible. The valuer is sitting somewhere in the, like Bhupenji told, the person is in Cuttack and he is working in Delhi. So if the person staying in Cuttack can afford a report from Delhi, so the Bank of Delhi should not accept the report of the valuer of Cuttack because he is sitting there. बैंक सिर्फ इस बात को इंश्योर कर ले कि सर्टिफिकेट हम लास्ट में इशू करते हैं कि प्रॉपर्टी हैज बीन इंस्पेक्टेड बाय मी पर्सनली, दिस शुड बी इंश्योर्ड बाय द बैंक. ये कंप्लायंस तो बैंक को देखनी ही चाहिए. वो क्या रहा है, बैंक की नॉलेज में ये चीजें एनकरेज हो रही हैं. इसी टॉपिक पे मतलब पता नहीं डीएफएस क्या एक्शन लेगा. मतलब मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे 2 साल पहले का पब्लिश आर्टिकल पे डिस्कशन के लिए डायरेक्टर बैंकिंग मिस्टर आरसी ठाकुर ने इनवाइट किया और इस पे उन्होंने अच्छा लंबा डिस्कशन किया. और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने नोट किया, मैंने उनसे बताया कि सपोज एनी सेल हैज अकर्ड और उसमें किसी तरह से बारोड या कहीं से भी प्रूव होता है कि दिस property was valued not inspected by the valuer appointed by the bank, whether it was done by his official, then that would be termed as a fake report and bank won't be able to return this report. Sir, best solution, Manoj, selfie of the valuer. That they have to decide. IBS इस पे बैक मांगा है. तो लेकिन बैंकर्स कंप्लायंस तो आपको देखना है कि रिपोर्ट आ रही है क्योंकि आपने एम्पैनल करते समय ये चाहा है कि हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस हो, हम ये हो वो हो, और वो आदमी खुद इंस्पेक्ट करे. अगर आप चाह रहे हो और सर्टिफिकेट ले रहे हो तो इसके कंप्लायंस पे भी आपको देखना होगा कि वेदर दिस कंडीशन इज बीइंग कंप्लाइड और नॉट. अगर नहीं हो रही है तो यू शुड चेक इट. अब हो क्या रहा है, बैंकर्स की नॉलेज में हो रहा है, वेरी वेल इन योर नॉलेज, सो यू शुड take some initiative. Sir, abhi in the change scenario, sir, abhi actually that was what you told. That depends on sanctioning authority to sanctioning authority. Some banking authorities are not accepting what you are telling, but now the change scenario since fraud are now increasing and to mitigate all those things, bank is proceeding towards उन चीजों को अभी करने के लिए, मतलब जो आप बता रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, वो चीजें अभी लागू होंगी तक.
सर अब दिल्ली के कुछ ऑफिसेज में तो अब उन्होंने बैंकर्स ने कुछ जगह पे रिपोर्ट को वापस कर दिया, जो आपकी सेंट्रल बैंक का सीएजी या क्या होता है उन्होंने वापस कर दिया कि दिस इज नॉट बीन वैल्यूड बाय द वैल्यूअर, बिल्कुल वापस भी किया है। ऐसा हो रहा है सर। वन मोर पॉइंट आई लाइक टू इन्फॉर्म, तो जो फेक रिपोर्ट है, फेक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि वैल्यूअर का सिग्नेचर नहीं है, किसी और का सिग्नेचर फर्जी में हो रही है। तो उसमें हम बैंक को बहुत दिन से ये लिखते आ रहे हैं कि जो आप वैल्यूअर को इम्पेयर करें उनका स्पेसिफिक सिग्नेचर आप अपने रिकॉर्ड में रखें, उसी को ब्रांच को सर्कुलर कर ले, ताकि कोई फर्जी, जैसे हमारे डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री का देखेंगे, डायरेक्टर ऑफ यूपी की है तो वो बाकायदा इम्पेयर से पहले वो साइन करके रख लेता और अपना जो अलग अलग रीजन में भेज देता। तो ये अगर बैंक हेड ऑफिस हो या जोनल ऑफिस हो, अगर इम्पेयर टाइम पे बैंक वैल्यूअर का सिग्नेचर स्पेसिफिकेशन अपने रखे है तो वो कहीं ना कहीं फिर वो पकड़ में आ जाता है कि कोई फर्जी सिग्नेचर में नहीं कर रहा हो। और एक चीज देखने वाली बात है, अगर एक वैल्यूअर अगर एक दिन में 20 रिपोर्ट बनाता है अलग अलग 10 शहरों में, ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लूपहोल है बैंकर के साथ ही, क्यों बैंक को ही सोचनी पड़ेगी कि आदमी इतना सारे काम सुबह लेता है, शाम को लेता है, फिर एक दिन में 10-20 रिपोर्ट कैसे करता है। तो ये कहीं ना कहीं करनी है। दूसरी बात ये है, एक वैल्यूअर्स को एक ब्रांच 20% से ज्यादा एक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। आई मीन एटलीस्ट 5 वैल्यूअर्स को एक ब्रांच अपने स्प्रेड करेगी। लेकिन कुछ बैंकों में ऐसा है कि ऐसा नहीं है, वो एक ही वैल्यूअर कर रहा है तो एक ही वैल्यूअर की सारी वैल्यूएशंस आ रही हैं। सो आई मीन दिस हैज टू बी सीन बाय द बैंक आल्सो। बिल्कुल सर, पॉइंट आपके पर्टिनेंट है और बैंकर्स को डेफिनेटली देखना चाहिए। हम लोग भी जब ऊपर प्रेडिक्ट करेंगे इस बात को, डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे इन टर्म्स को, ताकि फ्रॉड्स और जो भी मिसबिहेव हो रहे हैं वो डिक्रीज या इफेक्टिव। एक पॉइंट और आपको कहना चाहूंगा। एक्चुअली जहां तो फीस वाली बात हो रही है, वो नो डाउट बैंकर का कंपटीशन है, हर चीज सही है, लेकिन जहां तक वैल्यू वाली प्रॉपर्टी, मान लीजिए 50 करोड़ का वैल्यू कर रहे हैं, अगर कोई गलत आदमी गलत रिपोर्ट देके कम पैसे काम करता है, वो उतना बहुत रिस्की है, क्योंकि थोड़ी सी पैसा फीस के चक्कर में अगर आप गलत वैल्यू से काम कराएंगे तो वो कहीं ना कहीं बैंक को बहुत बड़ी नुकसान हो जाती है। तो इसलिए ये बात को मैं चाह रहा हूं हमारा चीफ गेस्ट साहब के माध्यम से उनका हायर अथॉरिटी जाए, तो यही आपको बैंकर्स को भी एजुकेट दे। अभी मुझे रिसेंटली कानपुर से रिलेटेड मैटर बता दूं, दैनिक जागरण की कुछ एसेट्स दिल्ली में है, मैंने उनकी वैल्यू किया और आपके जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं 50,000 फीस बन रही थी, तो मैंने बिल रेज किया। आपके वहां से जो ब्रांच मिले आदमी, उन्होंने कहा सर तो बहुत ज्यादा फीस है। हमने कहा भाई बारोवर को देने में दिक्कत नहीं हो रही है, तो व्हाई आर यू बॉदरिंग, व्हाई आर यू बॉदर्ड। उन्होंने फीस क्या मैंने बात की तो सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी नॉर्म्स है हम देने को तैयार हैं। उसके पेड में 50,000 फीस दें, लेकिन उसके पहले वो बैंक मैनेजर हमको परस्यू कर रहा है कि हमने कहा भाई जब बारोवर को कोई दिक्कत नहीं पे करने के लिए और आपके नॉर्म्स कहते हैं तो आपको देने में क्या दिक्कत है। अगर आप कम करते हैं तो बल्कि वो तो ऑब्जेक्शनेबल है। अगर तो मैं शिकायत करूं कि साहब इन्होंने फीस मेरी काटी, ये रिश्वत मांग रहे हैं, कट मांग रहे हैं, मैं नहीं दूं तो कह रहा है कम कर दो, ये तो ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन अगर आप 50,000 पूरी फीस दे रहे हो विद इन योर नॉर्म्स, तो हु इज गोइंग टू क्वेश्चन यू, कोई नहीं क्वेश्चन कर रहा है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है सर, सही है। अगर कस्टमर को देने में कोई दिक्कत नहीं है तो देना चाहिए। अगर इन नॉर्म्स आता है तो आई डोंट थिंक। और इवन आल्सो दे शुड, आई मीन देयर इज नो नॉर्म आपके बैंक, एटलीस्ट सेंट्रल बैंक में तो कहीं ये भी नहीं है कि इसको नेगोशिएट करना है। फीस हैज बीन फिक्स्ड, बट स्टिल now there should not be any negotiation also. अरविंद DRM साहब को थोड़ी जल्दी में जाना है, तो मेरे ख्याल उनको छोड़ दी जाए। हाँ, तो सर जो कुछ होगी आपकी शायद आपकी जो रीजन की ब्रांच रही होगी, जिसका दैनिक जागरण आपका ही बारोबार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गुप्ती ब्रांच का है। हाँ, और उसकी एसेट यहाँ नोएडा में है। तो काफी सारी मैंने पिछली बार पूरी फीस दी, इस बार बैंक में जैसा आपने तो बहुत ज्यादा फीस है, हम तो 5,000 से ऊपर देते ही। Definitely sir, we will look into our points whatever we discussed with the great professors like you। तो हम उसको ऑनर करते हैं सर आपके वर्ड्स को, और डेफिनेटली हम लोग आगे देखेंगे सर हम लोग क्या मैक्सिमम हेल्प और मैक्सिमम म्यूचुअल हेल्प से हम लोग आगे, बिकॉज हम लोग आगे दोनों साथ में बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Now let us start the open discussion, please. If anybody to say something, please come forward.
दास साहब परमिट करे तो मैं एक बताऊं। अरे साहब बोलिए, ओपन डिस्कशन सबका परमिट है। देखिए सर, ऐसा सर तो चले गए अभी, जस्ट मैं उनसे बोलने जा रहा था। मेरे हिसाब से अभी तक बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर जो नेशनलाइज बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करें तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो फॉलो कर रहा है वो है सिडबी, जो आपको लखनऊ का ही ब्रांच कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो सिडबी का मैं इसलिए कह रहा हूं मैं, बिकॉज हम लोग सबको सिडबी बारे पता है हमको, तो नीड नॉट डिटेल अबाउट सिडबी। इनका जो प्रोसीड्यूर अच्छा, एक तो उनका डायरेक्ट वर्टिकल टीम है evaluation। भूपेन को मेल कर दो पहले। हेलो, उनका डायरेक्ट वर्टिकल टीम है evaluation का। हेलो, रिको हो रहा है, आवाज आ रही है आपकी? हेलो, हाँ बोलिए 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 सर बोलिए। हाँ सर, मतलब मैं एसोसिएशन रिक्वेस्ट करूंगा उस मॉडल को स्टडी करें। सिडबी का जो मॉडल है उसमें मैं सिक्वेंशियली मतलब बताना चाह रहा हूँ हाउ इट इज द बेस्ट, आई एम टर्मिंग इज द बेस्ट मॉडल फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री टू बी अडॉप्टेड, मे बी इन अ डिफरेंट फॉर्मेट फॉर डिफरेंट बैंक्स एज पर देयर वॉल्यूम एंड एपिटाइट। सर पहली बात तो ये, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है मतलब फॉर ईच असाइनमेंट वो थ्रू मेल होता है, हर टाइम मेल होता है, कोई वर्बल अपॉइंटमेंट नहीं। दो नंबर बात टीम है, मेरे को बोलने दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा सर। थोड़ा बीच में डिस्टर्ब मत क्या करिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। हाँ सर, एक तो सर उनको जो अपॉइंटमेंट होता है थ्रू डायरेक्टली थ्रू ईमेल, यानी कोई बैंक में जाके काम लेने का ऐसे कुछ नहीं। दो नंबर बात ये, सारे जो उनको पेपर्स आते हैं मतलब प्रॉपर्टी पेपर्स का जो कॉपी आता है दैट इज थ्रू ईमेल, so it is always authenticated. We can always quote that these papers have been received by me from the branch or a bank itself, basically not directly from the party. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका जो वैल्यूएशन फॉर्मेट है इसका अंदर साफ साफ लिखा हुआ है जो एक वैल्यूअर को एक बार में 5 से ज्यादा काम नहीं मिलेगा, एंड यू हैव टू डिक्लेयर इट। मतलब सिंपल बात यह है, मेरे पास 5 से ज्यादा काम हुआ सिडबी का, तो मैं छठवां काम अभी नहीं कर सकता जब तक मैं बैकलॉग क्लियर नहीं करूं। अकॉर्डिंगली आई क्लियर माय स्लॉट्स बेसिकली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे हैव अ फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर, जो कि पहले ही बता देते हैं लोग, हर अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखा हुआ आता है जो आपको इस काम के लिए इतना फीस मिलेगा जितना वैल्यू होगा, एंड अकॉर्डिंगली उनका ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। अभी मेरे को पता नहीं अलग अलग जगह पे सिडबी क्या फॉलो करते हैं, बट मैं राजस्थान एक्सपीरियंस से बोल सकता है ये चीज प्रॉपरली फॉलो हो रहा है, एंड दोज गाइज हु आर वर्किंग फॉर सिडबी इन राजस्थान, Sir, it is same following in UP only. It is same procedure is followed in UP. सर ये हेलो Sir, same procedure is followed in UP also. यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू इंडिया। चला गया बोलो। बीपी सिंह साहब आपका नहीं बन रहा है। भरत आगे वाला कितना एरिया? मनोज ऑफिस काम यहाँ ना करा करो, और किसको कुछ बोल रहा है?
हेलो, और किसी को बोलना है कुछ? हेलो। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। हाँ, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। हाँ, मैं जो अभी ये डिस्कशन हो रहा था ना कि सजेशंस में, तो मैं मेरी भी ओपिनियन से जब भी हम लोग ये भरते हैं वैल्यूएशन के लिए, एम्पेनलमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उसमें ये भी क्लॉज कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए। एक्चुअली मेंशन होता भी है कि हम लोग कितनी कितनी बैंक में हैं ऑलरेडी पैनल, और कितने जोन्स में हैं, ये भी स्पेसिफाई होना चाहिए। ऑब्वियसली कि जब हमें पता चल जाता है कि इतने सारे बैंक में हम ऑलरेडी हैं और इतने जोन में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बैंक को भी सोचना चाहिए कि भाई इतनी सारी जगहों पे अगर है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी रिपोर्ट को तो आपको बहुत प्रॉपरली चेक करने की जरूरत पड़ेगी। जिसके पास बैंक कम है या जोन कम एरिया में, कम जोन्स में है, कम डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसा पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज होता था, उस केस में शायद ज्यादा से ये मॉनिटर की जा सकती है बातें कि हाँ हमें पता है कि हम कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं, तो उस केस में इजी है कि हाँ आप यहाँ पे बैठे हो, आप 2 डिस्ट्रिक्ट में हो, 4 डिस्ट्रिक्ट में हो, आप जो वैल्यूएशन देते हो तो आप इससे ज्यादा और दूर नहीं दे सकते। तो आप अभी तो यही हो रहा है ना कि एक आदमी इतने सारे बैंक में पैनलमेंट करा देता है, हर जोन में करा लेता है, तो इसके लिए भी तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। बस मुझे यही कहना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें आसानी से कोई चीज मिल रही है तो सब ले रहे हैं। अगर ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करा जाए कि भाई ठीक है, हमारे पास अगर 4 बैंक आ गए तो फिर अब हमें और नहीं आगे उसमें इन्वॉल्व करना, क्योंकि ऐसे तो यही हो ही रहा है कि हम ये सोचते हैं ये बैंक ना सही तो वो सही, और इसी उसमें लगे रहते हैं सारे। कितने तो डी पैनल करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, कितने सारे वैल्यूअर्स सुनने में आता है, पता चलता है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें भी काउंट कर रही हैं। हमें जो लगता है, मैं सबके लिए नहीं बोल सकती, मुझे लगता है कि ये भी मायने रख रहा है कि इतने सारा बहुत इजी हो रहा है कि इतने सारे उसमें पैनल में हो जाते हैं, और नो डाउट पता नहीं सोर्स के थ्रू या जो भी हो, क्योंकि अभी पीएनबी में जिस तरीके से मीटिंग हुई थी और जो जिस तरीके से बात हुई वो लगा नहीं, उसमें डिप्लोमा होल्डर्स को भी ले रखा है उन्होंने, एक्सपीरियंस भी जिस समय देते हैं उस समय ध्यान भी नहीं देते कि वो रिपोर्ट कर कौन रहा है या उसको हमने किस कैटेगरी में रख रखा है। तो ये सारे ही पॉइंट हैं, लेकिन अब ये बैंक को डिसाइड करना पड़ेगा। बस मुझे इतना ही बोलना है। और कोई किसी को बोलना है? और बोलना किसी को? सर। हाँ बोलिए सर नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बताइए। जी सर बोलिए। सर हमने ठीक बताई को मिल जा रहा है, लोग उसको अवेल कर रहे हैं, चेक पॉइंट तो होना ही चाहिए, और इसमें बैंकर्स को भी आगे करना होगा। हम लोग तो बनाए कि सबको खींच लो, अपने तरफ ले आओ, अपने बैंक में डालो। सबसे तो पहले पूरे बैंक को बगैर जीएसटी नंबर की अपने यहाँ रजिस्टर ही नहीं करना चाहिए। Why you are registering the first vendor having no register, no GST, लाखों कमा रहे हैं एक मंथ में।
अरे कहाँ भी हो रहा है सर आवाज नहीं आ रही आपकी तरफ। ये सर जिसका जीएसटी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उसका इम्पेयरमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं तो होना चाहिए सर, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए। जीएसटी से ये पता लगे कि हु इज गेटिंग मोर जॉब। But when his turnover is not more than 12-20 lakhs, he don't want to get registered in GST department. नहीं सर, सर क्यों? उसने एक बैंकों के पास से डाटा भी आ जाएगा ना कि X is doing 100 valuation per day, per month, and Y is doing only 5 valuation a month. खुद तो चेक पॉइंट बनाना होगा बैंकर्स को भी। हमारा ये कहना है कि सारे लोगों को प्रोवाइड कम्युनिटी सर्विसेज लोग जिन्होंने पूरी जमाने ट्रेड किया रजिस्टर में गेटिंग 2 और 5 जॉब और जो नया लड़के हैं गेटिंग मोर जॉब। सारे लोगों को स्वागत और एक जॉब करना चाहिए जो आपको सर्विस है बैंक के साथ या गेटिंग मोर जॉब। हाँ, इसलिए मिल रहा है कि वो अकॉर्डिंग टू बैंकर को वैल्यूएशन करना, उनका जो रिक्वायरमेंट है तो फिर कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा जॉब मिल रहा है, लेस वैल्यू में कर रहे हैं, उनका कोई भी अमाउंट पे कम करके आता है, कैश ज्यादा फिर आता है, ये सब सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़। और कुछ कहना किसी को? हाँ भूपेंद्र जी बताइए, एसोसिएशन को इस मामले में क्या करना चाहिए? मतलब ये फिर क्या हुआ? माइक ऑफ है सर का। माइक ऑफ है सर। भूपेंद्र जी का माइक ऑफ है। अच्छा ऑन किया है। मैं ये चाहूंगा कि हमारी एसोसिएशन भी इस पॉइंट इस गवर्नेंस इशू को रेज कर बैंकों के साथ सबको ये बताए। आप एक तरफ को एम्पैनल कर रहे हैं एक पर्सन को और एक कंडीशन ले रहे हैं कि कंप्लायंस इस पर नहीं है, इस बात को जरूर देखें क्योंकि मुश्किल में वो भी आ सकते हैं कभी अगर उनकी इस चीज को कभी चैलेंज हो गया, चेक हो गया तो इट टर्न बैड फॉर देम। स्पेसिफिकली अगर सरफेसी के मैटर में बात खुलती है, कोई सेल कर देते हैं या कोई सेटलमेंट कर देते हैं, वो चैलेंज हो जाता है कि सब फेक रिपोर्ट के आधार पे हुआ है, कोई इनएलिजिबल आदमी ने वैल्यू किया है तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट को हम एसोसिएशन भी रेज कर सकता है बैंक्स के साथ कि इसको कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम जरूर रखें कि वैल्यूअर खुद करे। जब वैल्यूअर खुद करेगा तो अपने आप वो स्क्वीज जाएगा, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वो खुद भी फीस को के लिए अपनी फीस के लिए फाइट करेगा और जो कॉर्पोरेट्स ढेर सारे वैल्यूएशन कर रहे हैं वो फिर इन इंडिविजुअल्स में ट्रांसफर होंगे। और अभी कोई साहब कह रहे थे कि मैं जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं ऑनेस्टली मैं सिर्फ वही वैल्यूएशन, मेरे पास स्टाफ है सब कुछ है लेकिन इंस्पेक्शन मैं करता हूं, वैल्यू मैं डिसाइड करता हूं, रिपोर्ट राइटिंग से लेके बाकी सारे काम हमारा सपोर्ट स्टाफ करता है। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम एक दिन में 2 या 3 वैल्यूएशन कर सकते हैं और अगर हम प्रॉपर फीस ले रहे हैं तो आई थिंक ग्रीड का तो कोई एंड नहीं है, हम कहां तक पैसा चाहें, लेकिन फॉर अ डिसेंट लाइवलीहुड भी अगर हम खुद भी करते हैं तो और प्रॉपर फीस लेते हैं तो इट इज सफिशिएंट। और वो क्या रहा कि हम ज्यादा काम लेते हैं, फीस को कम कर देते हैं और फिर सब दूसरों को वही दिक्कतें आती हैं। तो अगर हमारी एसोसिएशन इस बात को रेज करती है और कहती है कि इस पे कोई ना कोई मॉनिटरिंग करें और एरेंट जो लोग वैल्यूअर्स है उसको कुछ पेनल्टी करें या उनको कुछ कूलिंग पीरियड कर दें कि साहब तुमने 100 वैल्यूएशन कर दी, अब तुम अगले 100 वैल्यूएशन तुम नहीं करोगे 2 महीना। अभी मैं किसी बैंक से डिस्कशन हुआ है सीनियर लेवल पे, बल्कि स्पेसिफिकली मैं बता दूं पंजाब नेशनल बैंक के उनकी वर्टिकल हेड से बात हुई है
तो लोग ये उन्होंने नॉर्म सी बात जैसे कह रहे हैं कि जो सिडबी की बात हुई, सिडबी जो कर रहा है सेम वे पे पंजाब सिंध बैंक भी अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। मैं पिछले जनवरी से उनके एमडी के पीछे पड़ा हूँ, मेल पे मेल डालता जा रहा हूँ। मैंने कहा आपके कंप्लायंस में ये कमी हो रही है और फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, फीस कम आ रही है। तो उन्होंने मतलब कि जीएम ने मीटिंग की और ये बातें आई। तो हम बाकी लोगों को भी इस बात को अवेयर करें, उनको बताएं, तो शायद जो एक जगह कंसंट्रेट होता जा रहा वर्क, वो वर्क जो है दूसरों की तरफ भी आए। और ये एसोसिएशन को भी इसमें मतलब अगर हिस्सा लेगी तो उसकी बातों में ज्यादा फोर्स होगा। कल मैं परसों में शेयर करूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। सिंह साहब की बात के साथ मैंने एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मैंने उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही गौर से सुना हूं, जिसमें एक मेजर मुद्दा जो है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लीडिंग अस टू ए फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। क्वालिटी कंट्रोल बोथ बाय द बैंकर्स, दैट मींस द यूजर एंड द वैल्यूअर इटसेल्फ। ये क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और बैंक मैनेजर जो एसटी मेंबर्स है उनको मैंने एक चीज अपडेट करना चाहूंगा, लेटेस्ट एकदम, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड का अंदर 2028 से जो एडिशन आ रहा है उसके अंदर अलग से एक चैप्टर जोड़ा गया, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। द फर्स्ट टाइम IVS is adding a chapter which is specifically called as quality control. That means ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ये क्वालिटी कंट्रोल के इशू केवल मतलब हमारी नॉर्थ इंडिया और इंडिया में नहीं है, इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो वी एज ए वैल्यूअर, दैट इज द ourselves जो हम की बात कर रहे हैं, और एज वेल बैंकर और द इंटेंडेड यूजर जो है, उनको दोनों को ही क्वालिटी कंट्रोल के बारे में वाकिफ होना पड़ेगा और उसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। करेक्ट, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। एक्चुअली वो यूज कर रहे हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ बैंकर्स इसको एनकरेज कर रहे हैं और पूरी तरह से उनकी नॉलेज में ये फेक रिपोर्ट्स का ये जो प्रोफेशन है बढ़ रहा है, पूरी तरह से उनकी नॉलेज में वो जान रहे हैं कि लोग वैल्यूअर खुद नहीं कर रहा है, उनके एम्प्लॉइज और इल पेड और अनक्वालिफाइड। किसी ने कहा कि हमारा गैजेट इंजीनियर, अगर ऐसा है तो ठीक है, चल सकता है, उसमें मैं नहीं जानता, खैर लीगली कहा तो उचित है। लेकिन जहां पे बिल्कुल अनक्वालिफाइड मतलब आदमी जाता है पान की दुकान पे, उसने वैल्यू पूछ ली, फोटो खींच के चला आया। संजय गुप्ता जी कुछ कहना है? साइन नहीं करा, दूसरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। जब आप खुद जाते हैं, एटलीस्ट जब आप अवेयर रहते हैं, आप अपनी चीजों को डिफेंड करने में भी, अगर आपने खुद देखा है तो आप डिफेंड कर सकते हैं, कभी भी डिफेंड कर सकते हैं कि आपने कोई वैल्यू पे कंक्लूड किस बेसिस पे हुए हैं। संजय गुप्ता कुछ कह रहे हैं? संजय गुप्ता सर, गुड इवनिंग सभी लोगों को। मेरा सबमिशन ये है सर, पूरी बातों का निचोड़ केवल ये है जो मैंने अनुभव किया है, जो भी गड़बड़ियां वैल्यूएशन इंडस्ट्री में चल रही है वो केवल बढ़ावा दिया है बैंक ने। बैंक ये कहता है मैंने वैल्यूअर को रखा हुआ है, लीगल एडवाइजर को रखा हुआ है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका लोग डूब रहा है या क्या कर रहा है, उनकी हकीकत में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर प्लीज है क्या कि बैंक को फाइनेंस करना है, कंपटीशन का दौर है, उनको सुबह यदि उन्होंने रिपोर्ट दी, शाम को उनको चाहिए। मैं 2-4% बैंक की बात ही कर रहा हूँ, 90% बैंक केवल ये चाहता है कि हमारा कस्टमर, हमारा बोरोवर किसी दूसरे बैंक न जा पाए, और जो जल्दी से जल्दी सेवा दे सकता है वैल्यूअर, उसको हम पकड़े। 90-10% में हकीकत यही है कि वो कहते हैं क्वालिटी आप दीजिए, मेंटेन करिए, 2 दिन ले लीजिए, 3 दिन ले लीजिए। लेकिन जहां पर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं है, ये पूरा का पूरा जो वैल्यूएशन इंडस्ट्री में गड़बड़ चल रहा है, वो चल रहा है बैंक के द्वारा ही। बैंक चाहता है कि आज सुबह मैंने दिया आपको, आपका स्टाफ कर रहा है, कि आप कर रहे हो, कि आपका लड़का कर रहा है, कि आपकी वाइफ कर रही है, बड़ा हकीकत यही है कि उनको तो वैल्यूएशन से मतलब है। ठीक है, उनको लास्ट में लिखना पड़ता है कि आई एम सेटिस्फाइड विद द वैल्यूएशन गिवन बाय द वैल्यूअर, दैट्स ऑल। सर गलती तो वैल्यूअर की है ना, इसमें गलती अपने वैल्यूअर की है, वैल्यूअर की गलती है। और ऐसा नहीं, वो इनकरेज कर रहे हैं तो पनिशमेंट उनको भी मिल रहा है। कोई भी ऐसा केस नहीं है जहाँ पे वैल्यूअर ने गलत रिपोर्ट दी है और उसके वो बच गए हैं।
सर ऐसे कितने केसेस होते हैं? प्रूफ, अगर हमने कोई गलती कर दी, अल्टीमेटली उनको अप्रूव करना है। एटलीस्ट कोई ना कोई बैंक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल जरूर रहा हर केस में जहां पर बैंक अगर वैल्यूअर पनिश हुआ है, वहां बैंकर भी पनिश हुआ है। सर देखिए रियल पनिशमेंट मिला है, उसको व्हाट्सएप करो ना। वीरेंद्र प्रसाद है क्या सर? कितने केसेस में हुआ? बहुत कम केसेस आपको मिले होंगे ये चीज करने के लिए। क्यों? एक मैनेजर आता है ब्रांच मैनेजर बनके, उसने 1-1.5 साल बढ़िया बैटिंग की और बैटिंग करके वो निकल लिया। लेकिन आप हैं वहीं पर। आप यदि दिल्ली से कंसल्ट करते हैं तो आप दिल्ली से कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो जिस ब्रांच के लिए आपने वैल्यूएशन दी है वो तो 1.5-2 साल खेला खाला आराम से और निकल लिया वो। अब जो दूसरा मैनेजर सर आता है, मेरा कहना है कि जहां पे गलती हमने की है उन्होंने कनाइव किया है, जहां पे गलतियों में कनाइव किया है। कोई भी ऐसा केस नहीं है जहां पे वैल्यूअर को पनिशमेंट मिला है, बैंकर को नहीं मिला है। हर केस में बैंकर को पनिशमेंट मिला है। सर कितने केस? इक्वली मिल रहा सर, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कितने केस है? बैंक ने 100 केस किए तो उसमें एक भी रुकता हूँ और दिनेश शर्मा जी को बोलेंगे। दिनेश कुमार शर्मा जी को बोलेंगे। दिनेश कुमार शर्मा जी जहाँ पे वैल्यूअर को पनिशमेंट मिला है वहाँ बैंकर को भी मिला है। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ गया है तो बैंकर भी जेल में गए हैं। हर केस में आप देखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ सर, तो एक्चुअली कराइवेंस भाई कोर्ट कराइवेंस प्रूव कर रही है। सिंपल वैल्यूअर अकेला नहीं जाएगा। हो क्या रहा है बैंकर मैं केवल सिंपल चीज कह रहा हूँ सर, प्लीज। मैं सिंपल चीज कह रहा हूँ। 100 केस हुए, 100 केस में यदि 4 केस खराब हुए, ठीक है, 4 में पनिशमेंट हुआ, बाकी तो उसने बैटिंग बढ़िया की है। क्या कहते हैं 96 केसेस में वैल्यूअर भी तो वही कर रहे हैं, वो भी बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे वैल्यूअर से बैटिंग कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। ऐसे लोगों को जानता हूँ। मैंने सर सबकी सेल्फी क्यों नहीं कंपल्सरी करवाते हो बैंक में बोल के? यस, मनोज जी बिल्कुल सही कहा। मैं तो सेल्फी के पीछे पड़ा ही हुआ हूँ कि सेल्फी होनी चाहिए। सेल्फी लगेगी तो वैल्यूअर को जाना ही पड़ेगा। वो दिन में 4 रिपोर्ट करेगा कि वो सही है। बस वो शायद सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज है इस बात को मॉनिटर करने के लिए कि उसकी सेल्फी मैंडेटरी हो। मैं पिछले 7-8 मीटिंगों में सेल्फी के लिए केवल वैल्यूअर की सेल्फी, नॉट देयर एम्प्लॉइज, ओनली वैल्यूअर सेल्फी इज कंपल्सरी, मस्ट बी कंपल्सरी। यस, मैं कई मीटिंगों से कह रहा हूँ कि एसोसिएशन को दिनेश शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। दिनेश शर्मा जी सब सेल्फी मस्ट है। दिनेश शर्मा जी आपको क्या कहना है? बैंकों ने कर भी रखा है, लेकिन वो इस बात को खुद ही नहीं चेक कर रहे कि सेल्फी में है कौन। दिनेश शर्मा जी वो तो कह रहे हैं, वो तो बैंक तो कह रही है कि एसबीआई तो कह रहा है कि आप अपनी सेल्फी लगाइए, स्टाफ की लगाइए, सेल्फी होनी चाहिए। नहीं, कोई बैंक नहीं कह रहा है। एक्चुअली आईबीआई की मैंडेट यही है कि मतलब वैल्यूएशन अगर वो इंस्पेक्ट किया तो सेल्फी उसी की होगी। नहीं सर, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या सर? जो मेरे बैंक ने कहा वो मैं बता रहा हूँ आपको। आई एम नॉट टेलिंग लाई। मैं ये नहीं कह रहा है कि वो मैं बैंक मुझे कह रहा है किसी की भी सेल्फी लगा दीजिए, आप अपनी लगा दीजिए या स्टाफ की लगा दीजिए। वो नहीं कर रहे हैं, उनके पास अधिकार नहीं, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। मनोज जी, बैंक ये नहीं कह रहा है। बैंक में गैर जिम्मेदार लोग जो ऑफिसर्स है ना, वो ये बात कह रहे हैं। आपने किसी सीनियर अथॉरिटी कहा कि सेल्फी वैल्यूअर की नहीं लगेगी। जो वहां पे तो जो सर रीजनल मैनेजर थोड़ा हमको केस असाइन करता है, केस जो भी असाइन करता है वो तो मैं कह रहा हूँ तो जो छोटा ऑफिसर है, चिंगी चोरी वाले ऑफिसर है, वो ये बात कहते हैं। जो ऊपर ऑफिसर बैठे हैं उन्होंने कभी आपसे ये बात नहीं कही होगी। सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हाँ बोलिए। दिनेश शर्मा ऑफिसर इतना बड़ा नहीं है, वो तो अपनी टेबल से फाइल हटाने के लिए मुझे कह देता है। हाँ दिनेश जी बताइए। जी सर, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। सपोज एक रिपोर्ट हमने बना दी, उसपे 5.5 करोड़ की वैल्यू है। हमने सॉफ्ट कॉपी बैंक को दे दिया। बैंक ने किया ठीक है, हम आपको कंफर्म करते हैं। कुछ दिन बाद पता लगता है कि किसी वैल्यूअर के पास में वो कॉपी जाती है, बोला जी आप ये रिपोर्ट बना के दे दो। और उस वैल्यूअर ने जो हमारे आज का डिजिटल का जमाना है, हमारी रिपोर्ट को एडिट कर दिया कि 5.5 की जगह आपकी हमारी वैल्यू कर दी, सॉरी 3.5 की जगह हमारी वैल्यू कर दी 5.5। और दूसरे वैल्यूअर को बोल दिया कि देखो इन्होंने 5.5 की दी हुई है, तो आप भी इससे 10% प्लस माइनस करके दे दो।
अब होता क्या है, हमारी जो मार्केट में ऐसे ही फर्जी रिपोर्ट मतलब उसको एडिट कर दिया किसी भी लेवल पे। अब हमारी रिपोर्ट को तो रख दिया और उस वैल्यूअर से बनवा लिया प्लस माइनस 10 करके आके वहां पे सबमिट कर दिया। ये लोकल प्रॉब्लम के अलावा ये और मार्केट में बहुत ज्यादा चल। ये बार-बार बैंकर से बात किया, बोला जी हमने तो आपकी शेयर की नहीं। अब इसका समाधान क्या, हमने तो मान लीजिए 3.5 करोड़ की वैल्यू दी और हमारी कॉपी उसको प्रेजेंट कर दी मार्केट में एडिट करके जैसे भी किया कि जी इस वैल्यूअर ने 5.5 दिया है, अब आप इसमें 10% प्लस माइनस करके वैल्यू दे दीजिए। और उस वैल्यूअर का मेरे पास में कॉल आता है कि जी आपने कितनी फीस ली है, मेरे की जी मेरे को पेज भेजो, मेरे की इतनी तो मैंने वैल्यू ही नहीं दी। अब उस वैल्यूअर का मैं शायद वो ग्रुप में नहीं है, मैंने बताया कि आपके पास ये रिपोर्ट आई कहाँ से, ये तो बताओ मेरे को। तो उससे आई है, मेरे को नंबर भेज दो। अब वो वैल्यूअर जो हमारे भाई हैं उसका नंबर भी भेजना है कि फ्रॉड रिपोर्ट आपके पास में आई कहाँ से है। अब इसका क्या समाधान, भाई सॉफ्ट कॉपी है कहीं से मार्केट को उसने एडिट करके भेज दिया और वैल्यूअर जो हमारे भाई हैं वो उसका नंबर भी देना नहीं चाह रहे हमको कि भैया आपके पास में मेरी फ्रॉड रिपोर्ट आई कैसे एडिट है। अब इसका क्या, और ये मार्केट में खूब हो रहा है। मैं अभी ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ, ये आज का ही प्रेस केस है, 2-3 बार ऐसा हो। शर्मा जी इसका समाधान ये है कि कोई भी वैल्यूएशन जो बैंक के लिए आप कर रहे हैं पहले लेटर ऑफ एंगेजमेंट ले लीजिए। कोई देता नहीं सर, नहीं देता तो मत करिए। कोई सपोज एंगेजमेंट दे दिया, अभी ये तो हो गया, चलो हमको एक बात हो गई, लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी गई वो मार्केट में एडिट हो गई। आप क्वेश्चन समझिएगा, वो देखिए वो मार्केट में एडिट हो जाए या कुछ भी हो जाए, जो आपने रिपोर्ट बनाई है आप उसकी हार्ड कॉपी उनको रिसीव कराइए, मेल से भेज दीजिए सर। उसकी देखिए आप उसकी फीस लीजिए, ठीक है, बाकी आगे क्या हो रहा है उसकी चिंता आप मत सर। उसका फर्क पड़ता है, आप मेरी बात समझे। मान लो एक मैंने पीडीएफ बैंकर ने मांगा, दूसरे को नहीं दी, समझिए करने वाले को वही तो कह रहा हूँ, दैट इज द क्वेश्चन। अब ये उसने मान लिया 50 कर दिए, पकड़ा का भी एक आध आएगा तब तक तो अपना करिए। देखिए 500 और 1000 ना उसका क्या। अब बैंकर क्या कहते हैं, अब दूसरी बार एक और केस आया था, हमारे कोई एस्टीमेट आया, हमने मान लीजिए यूपीआई का केस का था, एस्टीमेट हमने दिया, मान लीजिए 2 करोड़ का एस्टीमेट, 50 लाख का एस्टीमेट दिया, उससे उसका काम बना या नहीं बना, उसने क्या एडिट करके उसको किसी भी लेवल पे 1.5 करोड़ का दे दिया। और 2 साल बाद हमारे को फोन कर रहा है बैंकर कि भैया आपने ये बनाया था, अभी इस पर टॉपर इसको अपडेटेड एस्टीमेट दे दीजिएगा। मेरी कौन सा एस्टीमेट है, मेरे को कॉपी भेजो। मैंने ये तो हमने बनाया नहीं है, ये हमारी वैल्यू नहीं है। बैंकर का भैया जिसने आपको किसने आपको सॉफ्ट कॉपी दे दी आपको, तो बैंकर कुछ करने को तैयार ही नहीं है, बोला जी हमको तो बस उस पर साइलेंट हो। बैंकर के नॉलेज में होता है। अब उसके केस में क्या किया है, मार्केट में आजकल डिजिटल का जमाना है, उस पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं, कोई भी आपकी एडिट वैल्यू करके मार्केट में घुमा रहा है, तो उसके लिए क्या किया है। और बैंकर तो कहता है हम नहीं जानते, हमें साइन कॉपी आपकी मिली हुई है हमें, बस। बैंकर तो सीधा कहता है आपकी साइन कॉपी हमको मिली हुई है। शर्मा जी, आप रिपोर्ट फिर हार्ड में न देके आप मेल पे भेजो ना, फिर ऐसा रिपोर्ट मेल पे भेजो। वो तो हम भेज देंगे, लेकिन इस सत्यता को जब मान लीजिए ये तो बहुत सारे काम हो रहे होंगे, कोई एक केस आएगा उस समय सत्यता जांच होगी, हम तो कहेंगे भैया हमारे हमने सबमिट नहीं की, लेकिन वो लेवल आएगा नहीं, उस लेवल में तो बहुत सारा काम हो चुका होगा। नहीं आप अपना चाहता है आप रिपोर्ट ना साइन करके स्कैन करके मेल पे भेज दीजिए। वो तो ठीक है सर, ये तो अभी हमने साइन कॉपी नहीं भेजी, आप क्वेश्चन समझिए सर। मैंने बता रहा हूँ, मान लो 3.5 करोड़ भेजा और मेरे पास में मेरी एडिटेड रिपोर्ट आ गई कि आपने 5.5 करोड़ भेजा है, आपने ये चीज किया है, इसी से प्लस माइनस 10% करके वैल्यू भेज रहा है। इसका कैसे कंट्रोल किया जाए सर। मैं तो साइन कॉपी नहीं भेजी, लेकिन दैट इज द प्रॉब्लम। इसके लिए आप बैंक को लिख के दे दीजिए कि मैंने तो इतनी बैंक से मैंने फोन से बात की, मार्केट में ना चला, बैंक को बता दिया हमने। नहीं लिखित में दीजिए, मेल करेंगे। अरे सर अभी तो मेरे साथ तो 2 बार हुआ। एक वैल्यूएशन जरूर क्रिएट करेंगे। एक वैल्यूएशन करी मैंने
दिव्यापुर की मेरी आई 3.5 करोड़ रुपए और दूसरे वैल्यूअर की आई 6 करोड़ रुपए, उसकी फीस भी नहीं मिली हमको। लेटर ऑफ एंगेजमेंट लीजिए। ठीक है सर, मेल करके बैंकर को भी इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन ये मार्केट में ये मतलब बड़ा चैलेंज है। नहीं वो ठीक है सर, जब आप देखिए अपनी बात आप लिखित में बैंक तक पहुंचा देंगे तो एक एविडेंस क्रिएट हो गया ना कि हमने बैंक को अवेयर कर दिया। कल के दिन कोई भी फ्रॉड होता है तो आप बता सकते हैं ना कि मैंने तो बताया था कि मेरी तो 3.5 करोड़ थी, अब वो कैसे इन्फ्लेट होकर के डॉक्यूमेंट घूम रहा है ये हम नहीं बता पाएंगे। इसकी जांच हो और इसमें जो भी कल्प्रिट जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई। मैं ये तो मैंने सोचा है कि जो जोनल लेवल पे, आरओ लेवल पे सबको सीसी में लेके इन्फॉर्म किया जाए कि भैया इस चीज को बिल्कुल सही हाउ इट कैन बी कंट्रोल, और एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीजें सर देखिए शर्मा जी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। शर्मा जी हमें हेड ऑफिस से सभी सेंटर को लेटर पर डिजाइन करके भेज दिया, तो आप अपना लोकल सेंटर का चेयरमैन सेक्रेटरी का भी जिम्मेदारी बनती है, अपना लोकल का जो प्रॉब्लम है अपना बैंक को भेजे, कॉपी टू हेड ऑफिस कर दे। तो आप लोग करते क्यों नहीं है? ठीक है सर, हम उनको सीसी में डाल के एसोसिएशन को भेज देंगे, उसमें कोई इशू। हाँ, आप अपना लेटर पैड आपके पास है, ऑलरेडी मेल पे जा चुकी है, आपका सेंटर के नाम पे लेटर पैड है, चेयरमैन सेक्रेटरी साइन कर उनको भेजे। आप यहाँ के सेंटर का सर लेटर है, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उनको मेल पे भेज देंगे। हाँ जी बोलिए। सेंटर की तरफ से लेटर है एसोसिएशन। बस सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवर वैल्यूड में करने वाले वैल्यूअर्स को ही पनिशमेंट हुआ है, कोई मैनेजर को नहीं हुआ है। मैनेजर्स को भी हुआ, ऐसा नहीं है सर। ओवर वैल्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यूअर की है। ओवर वैल्यूएशन में भी हुआ। हाँ जी बोलिए। ऐसा मेरे साथ भी 2 बार इंसिडेंट हैपन हुआ, ठीक है। मैं स्टिल आई एम नॉट वर्किंग। हमने उनका मेल पे वो ब्रांच मैनेजर तक की रिपोर्ट नहीं रहता। अब तो चेक पॉइंट आ रहा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट होगा। हम लोगों ने जब ये आईओबी का मीटिंग था छत्तीसगढ़ में, वहां भी गए हुए थे, इसमें काफी चर्चा हुआ। अब बैंकर्स को भी एडवाइस किया जा रहा है आप ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट लो। वाई ये पेपर क्यों उपयोग कर रहे हो? बैंक को कितना कॉस्ट आता है पेपर का परचेसिंग और डॉक्यूमेंट्स टाइप करो, ये करो। आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करो। आप प्राइवेट बैंक ऑनलाइन रिपोर्ट ही सबमिट कराते हैं, अब उनके तो पोर्टल आ गया, उसमें अपलोड करना पड़ता है। हाँ, नहीं अपलोड क्यों करेंगे? वाई अपलोडिंग? उनके पोर्टल पर हम बनाएंगे। नहीं उनके पोर्टल पे बनाना पड़ता है। हाँ, पोर्टल पर बना के पूरी रिपोर्ट की कॉपी स्कैन करके डालेंगे। नहीं उसी में डाटा फीड करके अपलोड करना पड़ता है। मैं डॉक्टर एक बता रहा हूँ, मेरे साथ एक वाक्या क्या हुआ। आई हैव डन ए वैल्यूएशन इन द ईयर ऑफ 2019, ओके। और जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारी वैल्यूएशन आई 3.5 करोड़ और किसी और का आ गया 5.5 करोड़, तो हमने भी कसम खा लिया तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। उस कॉपी को उठा के अब सीएमडी तक भेज दिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी अथॉरिटी, निश्चित वैल्यूएशन। अब उसका हुआ काम, तो हमारे मैनेजर साहब को ट्रांसफर को आसान हो गए, आसान हो गए। अब ऐसा नहीं, आप जज के चेयर पर बैठे हैं तो अनजस्टिस करेंगे तो आप भी पकड़े जाएंगे। हमारे यहाँ दिल्ली में एक जज साहब उनके घर से उतना नोट पकड़ाया जाला, तो क्या उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा क्या? हमारे यहाँ के जा रहे हैं मुख्यमंत्री लोग जेल जा रहे हैं, कई लोग जेल गए। मैं जहाँ से बिलोंग करता, हमारा जो बाजू वाला स्टेट है उसके सीएम गए जेल, हमारे सीएम गए जेल। गलत होता है, चाहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं, नोबडी कैन डू सच अबाउट दैट। अब आवाज नहीं उठाएंगे, उस सीएम के अगेंस्ट पे कोई एविडेंस नहीं रहेगा, कोई उसका विटनेस नहीं रहेगा, तो कैसे हाउ पॉसिबल? बगल में हमारा एक स्टेट है झारखंड, वहां तो हिंदी वालों का भी क्या स्वागत होता है, कैसे वेलकम होता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कैसे वेलकम होता है, आप पब्लिक देख रहे हैं। आवाज उठाना होगा सर, हमें लड़ना होगा। सारे मोड पे चले जाएंगे तो रहिए सर। ठीक सर, ठीक। और किसी का कुछ बोलना? हाँ मिलो।
बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ? फरवरी खत्म होने वाला है। यार देखो, ये प्लेटफॉर्म में ऐसी बातें नहीं करनी है। आप कानपुर सेंटर के चेयरमैन से बात कर लो। सर ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, मैंने यही तो कहा कि सर बैंक ऑफ इंडिया ओपन प्लेटफॉर्म जो टॉपिक डिस्कस हो आज का टॉपिक नहीं है वो अपना कानपुर सेंटर चेयरमैन से बात कर लो, उनको चिट्ठी मिल को वो बताएंगे कि वो जिम्मेदारी कानपुर सेंटर चेयरमैन को दी गई है। 7 करोड़ या तो उनको चिट्ठी भेज के कॉपी हमको भेज दो, तो हम उनसे पूछें कि आप प्रोग्रेस हो रहा नहीं हो रहा। लोकल मैटर लोकल सेंटर में सॉल्व होना। फरवरी में सर एक सेमिनार भी होने वाला था ना। हाँ, होना तो अभी भी है कानपुर सेंटर की। कानपुर सेंटर करना बोला, कानपुर सेंटर नहीं बोल के ऑल ओवर इंडिया जितने हमारे सेंटर है सभी चेयरमैन सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करी गई कि आप अपना सेंटर में जरूर सेमिनार करिए। उसमें फायदा ये है कि मान लो कानपुर में कर रहे हैं तो कानपुर का वैल्यूर को यहाँ का बैंक पहचानना शुरू करेगा, लखनऊ वालों को लखनऊ से पहचान करेगा। इसलिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट में अच्छा अपना पहचान बन जाएगी। इसलिए काउंसिल ने हमारी तय करी कि सभी चेयरमैन सेक्रेटरी को कही जाए कि फरवरी में अपने अपने सेंटर में एक छोटी सी 2 घंटा 3 घंटा का शाम को बैठ के डिस्कशन कर ले। तो उम्मीद करते हैं सभी सेंटर करेगा, कानपुर तो करेगा ही। पर एक सजेशन था मेरा जी सर, एक सजेशन था मेरा जी कि जिस तरह सीईबी क्या कहते हैं पूरी इंफॉर्मेशन डालती है इम्पेनलमेंट की, इंडिया और में कहीं भी इम्पेनलमेंट का निकलता है नोटिफिकेशन, तो क्या I1 अपने प्लेटफॉर्म पे क्या कहते हैं अपने मेंबर्स के लिए डाल सकते हैं? आनंद कुछ कहोगे इसमें? जी सर, मुझे आनंद से पूछ रहा। आनंद अभी क्या गाड़ी थी? चलो हम इस पे डिस्कशन करते हैं। हाँ सर, मतलब क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म पे भी डालना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल निकल जाती है हर चीज में, यहाँ पे लोग डाल देते हैं। नहीं सर, नहीं, अपन भी कहीं से कॉपी करके लाते हैं तो डाल देते हैं, नहीं डाल पाते हैं तो कहना नहीं चाहिए मुझे। चलो ठीक है, इस पे सर थोड़ा वर्क किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक। तो मेरे ख्याल और किसी को कुछ कहना नहीं होगा, तो मेरे ख्याल कंक्लूड हम करते हैं आज का जो डिस्कशन हुआ। सुनील जी क्या कहना बताइए? एक तो सबसे बड़ी मुद्दा ये हो रहा कि डिप्लोमा होल्डर को हम लोग अवॉइड करेंगे, तो बैंक को लेके आप डिप्लोमा होल्डर को इम्प्लेंट न करें। ये पॉइंट हमारे मेंबर ने सजेस्ट करी। इसके बाद जो कॉर्पोरेट कल्चर स्टार्ट हो रही है उसको भी अवॉइड करने के लिए हम बैंक को चिट्ठी लिखे कि तो जो कॉर्पोरेट कल्चर को तो अपने आप डिमिनिश हो जाएगा अगर आप उसमें कह देंगे जो इंटरनल वैल्यूअर करे। अगर हम इसको इन्फेसिस करें कि वैल्यूअर ही करेगा तो कॉर्पोरेट वैल्यूअर अपने आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक कॉर्पोरेट में 3 या 4 वैल्यूअर की क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे उस कॉर्पोरेट को ये लोग एम्पैनल कर रहे हैं, तो उन्हीं 3 वैल्यूअर्स को करना होगा। इन्फेसिस ये हो कि जिसको एम्पैनल किया गया है, जिसके क्रेडेंशियल के बेसिस पे एम्पैनलमेंट हुआ है, वो खुद पर्सनली इंस्पेक्ट करे। नहीं, हमारा काउंसिल में डिसाइड किया था। देखो, काउंसिल ने अभी एक बड़ी डिस्कशन चल रही, तो काउंसिल ने डिसाइड किया कि हम कोई वैल्यूअर को ऑल ओवर इंडिया, मान लो हम कानपुर बैठे हैं, हम जो है बॉम्बे में काम कर सकते हैं। ये शर्त ये है कि बाय फिजिकली में वहां जाओ, तो हम किसी को काम ही नहीं रोकेंगे। लेकिन ये कि मैं भी अभी भी जाता हूँ, लेकिन मैं उनसे पूरी फीस मांगता हूँ अपने 1 डे का मेरी कॉस्ट एंड प्लस टू एंड फ्रो रेंटल। अगर वायबल होगा तभी आदमी जाएगा। उसके बाद एक कॉर्पोरेट कल्चर कंट्रोल करने काउंसिल ने हम बैंक को लिखे रखा है कि आप जो जोन वाइज या रीजन वाइज पैनल करिए, आप हेड ऑफिस लेवल से ना किया करिए। जोन वाइज पैनल होने से उसी एरिया के लोग रहेंगे। ये पिछले काउंसिल में हमारा ये चीजें फाइनल डिस्कशन हुई थी। और तीसरा आप एक सजेशन आई थी सिडबी में जो 5 रिपोर्ट वाली, हम इसमें क्यों सिडबी, एक मान लो जैसे यूपी में सिडबी लखनऊ ऑफिस हो गया, एक ही ऑफिस कंट्रोल कर रहा, तो लेकिन बैंकों में तो एक ऑफिस है नहीं, और कंट्रोलिंग मेरे ख्याल में संभव है कि 5 रिपोर्ट के साथ ज्यादा आएगी तो छोटा अगला मना कर देंगे। ऐसा क्या दूसरे बैंक में हो सकती है? सिडबी के पास सॉफ्टवेयर है, बताता हूँ, उनके एक स्पेशल फीचर अभी रिसेंटली उन्होंने हमसे कहा सर वो उसमें कुछ करिए। हुआ क्या, उन्होंने मेरा पेमेंट कर रखा था, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर में पता नहीं क्यों अपडेट नहीं हो रहा था। तो उनकी ब्रांच, मतलब उनके बैंक में यह है कि अगर सिडबी की कोई ब्रांच के पास अगर कोई उन्होंने अनपेड बिल है उनकी ब्रांच में, तो वो कोई भी अपने सेंट्रल सिस्टम से कोई नया वर्क ही असाइन नहीं कर सकते हैं।
नया काम, तो हमने कहा मैं कुछ कर नहीं सकता, सॉफ्टवेयर आपका, अब आप देखिए, मुझे पेमेंट मिल गया, जस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट, अपलोड करना पड़ता है उनकी इस पे पोर्टल पे। तो मतलब उनका तो मुझे लगा बहुत अच्छा सिस्टम है कि मतलब अगर वो किसी का पेमेंट नहीं है, अगर उन्होंने किया है तो नया काम ही नहीं अलॉट कर सकते, नया काम ही नहीं कर सकते। और जो 5 की बात है, एट ए टाइम 5 अगर पेंडिंग किसी वैल्यूअर के पास एट ए टाइम 5 अगर पेंडिंग रिपोर्ट्स है तो उसको छठा नहीं अलॉट किया जाएगा। नहीं सिंह साहब, 5 रिपोर्ट पेंडिंग हो तो इन्फॉर्म करता है, या फिर 5 रिपोर्ट अगर अलर्ट होता है तो इन्फॉर्म करता है? नो 5 रिपोर्ट पेंडिंग है तो अगर उनके पोर्टल में नजर आता है, छठा कार्ड आपको उनका पोर्टल सॉफ्टवेयर अलॉट ही नहीं होने देगा, वो पेंडेंसी पे है, नॉट तो अगर अगला 10 रिपोर्ट बन तो मना नहीं उसके कुछ नहीं, तब मना नहीं। लेकिन वो सेंट्रल ऑफिस से हो रहा है तो वो उनका वो देखते हैं, अगर उनके भी किसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसकी ब्रांच यहाँ से बोलते हैं कि इस वैल्यू के दीजिए, तो उनका सेंट्रल ऑफिस जो उनका वर्टिकल है लखनऊ में, वो वर्क अलॉट करता है, वो होता है इनके कंसल्टेशन पे ही है। तो हम बैंक को इसके बारे में सजेशन क्या करें, सजेशन क्या दें? मतलब उनके पास भी मतलब वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बात को मॉनिटर करें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं कि आपने 100 वैल्यूअर रखा है और 5 को काम दे रहे हैं, 95 तो क्यों नहीं दे, इस बात की मॉनिटरिंग वो करें। नहीं, क्या वो पोर्टल डेवलप करने से कंट्रोल हो सकती है? इससे पोर्टल अगर डेवलप करेंगे उनका सीट भी जैसे डेवलप करना होगी, क्यों नहीं, बस सब जो सॉफ्टवेयर होगा हर चीज उनके सामने भी पंजाब नेशनल बैंक कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक क्या कर रहा है? एक्चुअली पंजाब नेशनल बैंक को मैंने किसी बात में दिक्कत आ गई तो मैंने उनके एमडी को लेकर, देखिए आपने गवर्नेंस का इश्यू है, मैं एक वैल्यूअर हूँ, मेरे क्रेडेंशियल ये हैं, आपके यहाँ मैं पिछले 3 साल से वैल्यूअर अपॉइंटेड हूँ, लेकिन मुझे असाइनमेंट एक भी नहीं आया, तो ऐसा क्यों है? तो ऑफिस में बार बार रिमाइंडर भेजता रहा, तो भाई उनके कोई जीएम उस वर्टिकल के हेड थे, उनके साथ मीटिंग की, तो उन्होंने कहा हम इस पे हम भी अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ भी वर्क जो है सिद्धि की तरह से साइन सेंट्रल ऑफिस से ही होगा, मतलब कंट्रोल होगा, तो उनके पास मॉनिटरिंग रहेगी कि हमारे पास 100 वैल्यूअर है, 100 में से किसको काम मिल रहा है, किसको काम नहीं मिल रहा है। अगर कोई एक ब्रांच ने सिर्फ 5 पे कंसंट्रेट कर रही है तो क्यों कर रही है, तो उनका ये भी है कि कूलिंग ऑफ कर देंगे कि एक वैल्यूअर के ब्रांच ने इतना वैल्यूएशन दे दिया है तो अगले 1 महीने तक कोई वैल्यूएशन नहीं देगी, या मतलब दूसरों को देगी, तो मॉनिटरिंग करेंगे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू। अभी क्या है, कुछ बैंकों में, जैसे मैं खुद भी कुछ बैंकों पे कोई काम नहीं आता, खैर मैं बॉदर नहीं करता, बट स्टिल पैनल पे हूं, नहीं आता, भाई क्यों नहीं आता, तो कम से कम अगर आपने एक पैनल बना रखा है और इतने वैल्यूअर्स हैं तो बाकी को क्यों नहीं आ रहा है, इसका आपको तो जानने का मतलब मॉनिटर करना है ना कि 5 को मिल रहा है 95 को नहीं मिल रहा है। तो ये मतलब अगर हम अपने एसोसिएशन के थ्रू इस बात को रेज करें तो मेरे ख्याल में टोटल हम 4 पॉइंट नोट कर रहे हैं। एक तो बैंक को एडवाइज करेंगे टू डेवलप पोर्टल फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। नंबर 2, टू अवॉइड कल्चरल सिस्टम एंड फेक रिपोर्ट, द पैनल वैल्यूअर शुड इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी। नंबर 3, since we have a number of degree holders, we should avoid diploma holders coming to the valuation stage. And number 4, the impanel should be either, this have been decided in council, and council has suggested that the impanel should be zone में region wise। ये 4 पॉइंट मेरे ख्याल में हम लोग बैंक को भेजेंगे। अपनी जानकारी के पूछ रहा हूँ, कौन बैंक है जो डिप्लोमा होल्डर्स को वर्क असाइन कर रहा है? नहीं, अभी से बात हो रही थी, पीएनबी कर रहा है मेरे ख्याल में। नहीं, अभी तो चर्चा हो रही थी, कोई कह रहा है अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट के लिए अप्लाई किया। सर मैं सॉरी मैं इंटरप्ट, मैंने देखी है, लिस्ट देखी है, उसमें है बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स कर रहे हैं, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में किसी नहीं सर, पीएनबी में होगा, पीएनबी में, क्योंकि पीएनबी है सर, ऑफिशियली उन्होंने क्वालिफिकेशन डिप्लोमा नहीं, उनको क्वालिफिकेशन मेंशन शिक्षा उनका पॉलिसी में मेंशन थी कि डिप्लोमा में सी क्लास तक कुछ है। रेस भी कर रहा था कि ये देखिए आपने लिस्ट में डाल रखा है, आपने किस बेसिस जब भी एडवर्टीजमेंट निकलते हैं उसमें डिप्लोमा होल्डर्स का भी है कि दे कैन अप्लाई सभी बैंकों में। अरे सर, सभी बैंक नहीं, हम क्या बैंक की पॉलिसी को चैलेंज कर सकते हैं क्या? डिप्लोमा होल्डर्स यूबीआई, अरे यहाँ तक एसबीआई में भी है सर। नहीं, एसबीआई नहीं होगा। अरे सर देखिए, अभी निकला था ना एसबीआई का, उसका मैं देखिए मेरे पास वो डला हुआ, तो मैं भेजूंगा आपको। नहीं, क्या हम एक कॉमन परफॉर्मर उन्होंने कर दिया, काम नहीं कर रहा है कि उन्होंने पहले डिप्लोमा से मांगा होगा कि फॉर्म भर के दे दीजिए, लेकिन क्या डिप्लोमा होल्डर्स वहां पे काम कर रहे हैं इन पे?
बिल्कुल सर ये नहीं पता है, बात भी नहीं हो रही। लेकिन रिक्वायरमेंट मांगी गई है, सभी बैंकों में मांगी गई है डिप्लोमा होल्डर्स को। ठीक है लेकिन आशु जी IBBI ऑर्डर्स का भी किया था, उनको भी काम नहीं दे रही है वो 34 भी मांग रही है, इम्पैनलमेंट होने के बाद भी उनको काम नहीं मिल रहा है। लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट में तो दे रहे हैं ना, तो डिप्लोमा होल्डर की भी अप्लाई कर सकते चले हैं। ठीक है, हम डिप्लोमा होल्डर के लिए हम बैंक IBA की गाइडलाइंस में जो पैनलमेंट का लेटर है वो कॉमन है। IBBI में देखा हो सकता है। नहीं कि आपने देखा होगा हर बैंक में वही कॉमन है, जो इम्पैनलमेंट का लेटर है, चाहे इंडियन बैंक ऑफ इंडिया का हो चाहे PNB का हो, वो कॉमन इम्पैनलमेंट की एप्लीकेशन है। चलो ये वैसे प्रिंट हो क्या रहा है जैसे पीछे से मिल रहा है भैया चलो करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कानपुर की बात बता रहा हूँ, कानपुर में मेरे पास उन लोगों का जिनका डिग्री होल्डर के बेस पे पैनलमेंट हो गया और 34A भी नहीं है, उन लोगों ने मुझसे आके शिकायत की हुई है कि साहब मेरे को काम इसलिए नहीं मिला पैनलमेंट होने के बाद भी क्योंकि मेरे पास 34A भी नहीं है, तो मेरा पैनलमेंट हुआ क्यों? ये डिग्री होल्डर्स की बात बता रहा हूँ, डिप्लोमा तो दूर की बात है, डिप्लोमा तो कोई भी नहीं है इधर कानपुर में ऐसा आया। और मेरे साथी भी यहाँ पे कानपुर वाले बैठे हैं, वो भी उनके नॉलेज में भी नहीं ऐसा ना, जो नीता मैम कह रही है लखनऊ में, आशुतोष जो नीता मैम कह रही है कि दोनों देखिए PNB लखनऊ में काम कर रहे हैं PNB का डिप्लोमा होल्डर, तो झूठ थोड़ी बोल रहे होगी, उनका कोई बेस होगी तो बता रही है। मैंने मैडम से बात करी है, उनको लिस्ट दिखाई थी, तो वो लिस्ट जो हमको भेज दीजिएगा पे आशुतोष को मेल पे। सर ये बात आज की नहीं है, ये मेरा जब पैनलमेंट हुआ था तब की है, उस समय मैंने बोला ऐसा था हो उनसे। सकता है कि वो आदमी डिप्लोमा भी हो, उसके डिग्री भी हो। नहीं आप तो उल्टा बोल रहे हैं, जब डिग्री है तो हमारा वो उसमें मेंशन डिग्री होता है, डिप्लोमा तक थोड़ी ना मेंशन रहता है। जो डिप्लोमा होल्डर एक्चुअली ये सब जगह हो रहा है, वो जो कुछ सोर्स से भी घुसते हैं, सब सारे प्रॉपर चैनल से नहीं जाते हैं अंदर। नहीं, मोस्ट ऑफ द बैंक तो आप प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, बोर्ड से अप्रूवल्स ले रहे हैं, जैसे कैनरा बैंक का हुआ, PNB का हुआ। ये हमारा मैटर, ये हमारा आज का मुद्दा भी नहीं है, बट प्रैक्टिकल ये जो हम लोग प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हैं उसके पीछे इनकॉम्पिटेंसी इसी वजह से भी है। और चूंकि वो पैनल में है तो वो इसका एडवांटेज जो लोग नहीं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, और वो इस तरीके से काम हो रहे हैं। अरे ये बहुत डिफरेंटली काम हो रहे हैं। लेकिन हम लोग का मुद्दा ये है कि भाई अगर जो देखिए, आप मीटिंग में सिर्फ वही लोग आते हैं ना जो सही काम करना चाह रहे हैं, बाकी तो नहीं आते लोग। कितने सारे पैनल हैं, सारे तो नहीं आते ना। तो ये हमें भी समझना होगा कि इंटरेस्टेड कितने लोग हैं सही करने में। तो ठीक है मैम, फिर आज हम मतलब मीटिंग में यही डिसाइड हुआ, एक तो बैंक को हम लिखेंगे कि वो पोर्टल बना ले ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो, और पैनल वैल्यू इंस्पेक्ट करे साइट को, और डिप्लोमेंट अवॉइड करे, और जो नॉइज इम्प्लीमेंट हो। ये 4 पॉइंट जो है एक पॉइंट और लिख लीजिए नाम पे किसका देंगे? एक पॉइंट और लिख लीजिए उसमें। डिप्लोमा है नहीं, क्या हुआ? वो अगर आप ये लिख भी देंगे कि मेरे आपने डिप्लोमा ऑर्डर का पैनल कर रखा है, तो आप वो कहेंगे मेरे इसमें कोई भी डिप्लोमा नहीं, वो देखो वो सिंपल तरीका है, उनका जो पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसमें लिखा हुआ डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है, वो लिखा हुआ है। तो अभी से अगर, क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन है, हमारा डिग्री होल्डर इंजीनियरिंग की एसोसिएशन है, तो इसलिए हम डिग्री होल्डर के सेफ के लिए हम तो चाहेंगे ना डिप्लोमा होल्डर कोई ना आए, क्योंकि वो बैंक का पॉलिसी में है कि हम डिप्लोमा होल्डर कैन अप्लाई, वो चाहे रखे ना रखे, हम उसी पॉलिसी को ही चैलेंज करेंगे ना। फिर एक पॉइंट और लिख लीजिए उसमें, 5वां नंबर, कि जब बैंक वैल्यूअर को मीटिंग के लिए बुलाता है तो वैल्यूअर ही वहाँ होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये बातें मैंने जेडीएम से बोला था स्टेट बैंक में, मैं जो अभी चिट्ठी भेज रहा हूँ तो हाँ ठीक है, वो समझिए मैं बोल देता हूँ। मीटिंग ऑफ वैल्यूअर से भी ज्वाइन कराओ, क्योंकि पिछले बार जब हम लोग मीटिंग में गए थे तो हम लोग 4-6 वैल्यूअर थे, बाकी तो उनका लौंडे बैठे थे। तो मैंने डीजीएम को बोल आया था, सब मैंने शिकायत दर्ज करा दिया था, तो ये भी चिट्ठी पॉइंट आ जाएगी। लेकिन मैं कह रही यूनियन बैंक जो बुलाया था, मेरे ख्याल उसमें वैल्यूअर्स लोग गए थे, कहीं और कोई उनका स्टाफ शायद नहीं गया था मेरे ख्याल में। नहीं, यूनियन बैंक ने जो बुलाया था मीटिंग कैंसिल हो गई। अरे कैंसिल कैसे हो गई यार? अरे उन्होंने फोन करके वापस अरे फोन करके आपने अटेंड कर ली, अरे भैया अटेंड कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं मीटिंग हो गई। ऑफिशियली फोन पे ये बात कही गई थी मीटिंग कैंसिल हो गई, फोन आया था कि आप सपोर्ट ना करिए आप।
मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो। लोगों को फोन करके मना किया है और इसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और व्हाट्सएप पे भी है। ऐसा ना, सुनो तो सही। जो को सपोर्ट कर रही है कहके, ये तो उन्होंने गलत व्यवहार किया आप लोगों के साथ, रास्ते से हमको लौटा दिया और आप कह रहे हैं कि उन्होंने मीटिंग तो जाके उसको जिन्होंने फोन, आशुतोष जिन्होंने फोन किया था उसको जाके, अरे आशुतोष जिन्होंने फोन किया था उनको जाके पलट के बताया कि हमने फोन कैंसिल की, मीटिंग कैंसिल क्यों कर दी। हाँ तो मैंने पलट के बोला है। अब ये बताना आप क्या आपको नहीं बताया, लेकिन ये बात तो सच है ना। तो आप बैंक नहीं, मेरे बात तो सुनो, मेरे बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरे कान को भी आया था कि मीटिंग कैंसिल हो रही है, तो मैं जाके फिर आरएम से कहा, मैंने कहीं को मतलब मजाक थोड़ी है क्या वो मीटिंग बुला, वैल्यूर से अपना काम छोड़ के यहाँ पहुंचे हैं, आप मीटिंग कैंसिल कर दोगे। फिर उसका फिर कौन सी मीटिंग करी जाएगी। तो मीटिंग बाकायदा मीटिंग हुई घंटे। तो ये कह रहा हूँ आराम से जाके कि यहाँ पे मजाक थोड़ी ना, आप कुछ लोगों को वापस उठा दो, कुछ बेंगलोर आ जाए तो मीटिंग कर लो और उसको कहते हो मीटिंग हो गई। तो 10 से आ गया, आनंद जी कह रहे मीटिंग नहीं हुई तो नहीं हुई। आप अगर कहते हैं मीटिंग हो रही है तो आप बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं मीटिंग, तो अरे मैं तो कह रहा हूँ तो आपकी ऐसा ना जिन लोगों ने बुलाने पे वापस चले गए थे उनको उस टाइम तुरंत आना चाहिए था, उसी टाइम बैंक से झगड़ा करना चाहिए था। मैं फिर आरएम से क्या नहीं, क्या भाई मीटिंग करनी पड़ेगी। ये चीजें कोई मेंबर जो है, आपने खुद की मीटिंग करी, आपने मेंबर्स की मीटिंग नहीं करी। किसकी? आपने झगड़ा करके अपनी मीटिंग करी है। मालूम है उस दिन कितना वैल्यूर थे वहां पे, मालूम है कितना वैल्यूर वहां पे थे, मालूम है सभी लोग थे। मैं वहां गया नहीं तो मुझे जाने नहीं, मेरी तो हाँ तो फिर तो मैं कैसे जानूं? आशुतोष जी आप एक बार उनकी बात तो सुने, वो क्या कह रहे हैं। अगर किसी ने मना किया, अभी जाके मौके पे जाके उनसे कभी जाके बात करी कि तूने मना क्यों कर दिया, कभी नहीं गए तुम लोगों ने। बात क्या करना, ये तो उनका संदेशा तो आप पहुंचा रहे हो ना कि मीटिंग हो गई। उन्होंने तो कहा नहीं मीटिंग हुई, उनका मैसेज आप दे रहे हैं कि मीटिंग हो गई। चलो ठीक है, बुलाया गया तो गए, हो गई तो हम ये बात उनसे कहेंगे ना। अरे बुलाया गया, 2 लोग नहीं आए, जो बुला के उन्होंने मना, आधे घंटे हम सुरेश त्रिपाठी हम दोनों बैठे थे, फिर हमको किसी ने कहा कि मेरे ख्याल मनोज भी था मेरे ख्याल में, फिर वो आगे मीटिंग कैंसिल हो रही है, तो फिर मैंने जाकर मेरे को सबको बुला, फिर मनोज ने किसी को लोग बुलाए भी। चलो ठीक है, वो जो भी बैंक बुलाएगा, जो आपकी मीटिंग के लिए वो वापस भेजा, वो फोन करेगा तब हम आएंगे। नहीं बुलाया तो भगवान के घर ना जाए। चलो ठीक है, आनंद और कोई पॉइंट है? ठीक है, हाँ एक तो हो गया, जो मीटिंग होगा वैल्यूर्स को बुलाएंगे, और कोई पॉइंट? अब पॉइंट ये है कि जैसे कि अभी सिंह साहब ने बताया कि फेक वैल्यूएशन की दिक्कत है, वैसे ही फेक एस्टिमेट की भी दिक्कत है। एस्टिमेट भी कोई भी बना दे रहा, कोई भी रोड छाप बना करके दे रहा, बैंक एक्सेप्ट कर रहा, वो भी नहीं होना। नहीं, अभी तो ग्रुप में कुछ पड़ी थी एस्टिमेट, क्या रेट लिया था? वो तो पर्सन ही मतलब नॉन ग्राटा है, उसकी भी मतलब एस्टिमेट एक्सेप्ट हो रही किसी बैंक नहीं। तो फिर हम बैंक को ये लिखे कि जो एस्टिमेट है वो भी आप वैल्यूर से ही हाँ, वो आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है वो तो यही कहता है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे कुछ। नहीं, एस्टिमेट को लेके बैंकर खुद ही क्या कहता है कि उन्होंने काम करा लिया है, अब आप बैंक डेट में एस्टिमेट दे दीजिए और हम उसको पूरा पैसा डिसबर्स कर चुके हैं। अब बताइए, जब बैंकर खुद ही गलत काम करवाना चाह रहा है। अरे वो हम कह रहे हैं वो करवाना चाह रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं? सर वो बात ठीक है, लेकिन हम बैंकर्स को मना करते हैं कि भैया हम कंप्लीशन नहीं देंगे, तो वो कहते हैं ठीक है आप मत दीजिए, हम किसी और से ले लेंगे। तो जो देता फिर उसकी कंप्लेन करनी है। कंप्लेन नहीं करनी, बैंक को कंप्लीशन की तो हर अथॉरिटी दे रही है, डिफरेंट अथॉरिटीज है। चलो ये 6 पॉइंट का, और कोई पॉइंट है क्या आप बताओ? 6 पॉइंट नोट हो गई, ये इसी हफ्ते बैंक को चिट्ठी पे पहुंच जाएगी। और सभी सेंट्रल चेयरमैन सेक्रेटरी अनुरोध है, जो हेड ऑफ चिट्ठी जाए कम से कम अपना रीजन, अपने जोन में ये चिट्ठी लेकर खुद ही भी तो बाय पर्सन तो जाए। सर आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी सेक्टर के सेक्रेटरी है या हेड है, उनसे कम से कम मैं काफी टाइम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उन्हें कम से कम अपने जो ये महीने में आप एक वेबिनार करते हैं इसमें तो आए सर, वो इसमें ही नहीं आते। अरे मैं क्या बताऊं, दुख की बात है, हम पिछले महीने चेयरमैन सेक्रेटरी का मीटिंग ही बुलाई थी, उसमें भी अटेंड, जो पर्टिकुलर चेयरमैन सेक्रेटरी का मीटिंग थी,
वो खाली सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप सस्ती पड़ी है, जो कुछ मानना व्हाट्सएप ग्रुप मार देंगे, काम खत्म। चलो उनको तो देखेंगे, बात करेंगे उन लोगों से। तो ये 6 पॉइंट हुआ, मैं एक बार फाइनल कर देता हूं। एक तो बैंक को लिखेंगे टू डेवलप पोर्टल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, फिर पैनल वर्क टू इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी, फिर डिप्लॉय होल्डर को अवॉइड करनी है, जोन वाइज इम्पैक्ट होना चाहिए, मीटिंग जो जोनल हेड रीजनल जो मीटिंग बुलाते हैं उसे सिर्फ वैल्योर ही मौके पे मौजूद रहे, और एस्टिमेट जो है वो भी वैल्योर से ली जाए। लेकिन ये चिट्ठी हम लोग इसमें एक बात और है कि स्टेट बैंक जो ऑफर लेटर मेल के थ्रू दें, वर्क अलॉटमेंट के लिए मेल आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो स्टेट बैंक का तो अपना पोर्टल है VIM के नाम से, लेकिन वो उसको ऑपरेशनल नहीं रखता है। VBM भी हाँ, VBM जो है उसको वो ऑपरेशनल नहीं रखते हैं, मतलब मर्जी है उनकी। चले वॉलेट में वर्क लालो लेटर है, वो केवल फाउंडिंग लोन के देते हैं। VBM पे अपलोड कराने से पहले अपने पास हार्ड कॉपी मंगाते हैं, फिर वो ये भी इंसिस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से सिंह साहब शायद जानते होंगे क्योंकि आप गाजियाबाद में, इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जी सारे वैल्यू 95% RV दे रहे हैं, तो आप RV 90% क्यों दे रहे हैं, यहाँ तक बातचीत होती है। उसकी इतनी वैल्यू आई है, आपने इतनी वैल्यू क्यों की है, वो पहले वैल्यू डिसाइड करवाते हैं, आपसे हार्ड कॉपी लेते हैं, फिर उसके बाद उसे VBM करवाते हैं, तो फाइनल होते हैं, फाइनल करते हैं। नहीं, इस चीज को रोकने के लिए मतलब एक सजेशन मैंने दिया भी था कि हम लोग एक ऐसा मतलब एक रेट लिस्ट तैयार करें सेंट्रलाइज, जिससे कि जो भी वैल्यूअर वैल्यू देने जा रहा है वो उसको ये पता रहे कि वो कितना ऊपर लिखने वाला है। अगर वो उसको देख लेता है कि नहीं ये फलाना अपार्टमेंट का इससे ज्यादा नहीं मतलब होना चाहिए, और फिर भी वो डबल ट्रिपल लिख रहा है, तो उसे पहले से पता है कि वो कर क्या रहा है। नहीं, उसके लिए आनंद हमारा जो MK से बात हो रही थी, तो ये हो रहा था कि आज सबसे बताया जाए कि अपने अपने सिटी में एक टीम बनाए, और अपना रेट जो जैसे आज कह रहा था कि आनंद वहां रहता है वहां का दे देगा, हम वहां रहते हैं, इस ढंग से जो एरिया में रहते हैं उसी एरिया का रेट एक्सेसिबिलिटी दे दे। अगर तुम्हें याद होगा, ये हम लोगों ने IOV के टाइम पे हम लोगों ने प्रोसेस शुरू करी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। नहीं, तो कोई बात नहीं, अब हम लोग कर सकते हैं, तो उसको क्या है पूरा डिजिटल फॉर्म में तैयार करेंगे, तो और उसको एक्सेस कोई नंबर के अलावा कोई कर नहीं पाएगा। तो ये बात हुई MK से आज, जो तुम्हारा व्हाट्सएप ने देखा था, तो MK से फोन की बात हुई थी, तो बोला था आज मीटिंग सबसे कह दो कि सब लोग अपने अपना मतलब वॉलंटरी आगे आ जाए कि हम ये काम जिम्मेदारी हम लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो सभी सेंटर चेयरमैन से कह देंगे, या कानपुर का आप अपना टीम बना लो, तो कानपुर का हो जाएगी। एक स्टेट कोई सैंपल तौर पे एक शहर अगर शुरू हो जाए, उसको देख के बाकी सेंटर भी हमारा शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे अनुरोध है, अगर डिजिटल रिकॉर्ड पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, मेंबरशिप के अकॉर्डिंग वो खुलेगा, वो तो फिर वेबसाइट अपने पड़ी जाएगी ना, फिर जो मेंबर होगा वेबसाइट में ऐसे फ्री सोर्स नहीं रहेगा वो। हाँ। वो एक बार में एक ही बंदे को एक ही डेट देखने को मिलेगा। वो तो फिर हम लोग काउंसिल में देख लेंगे क्या करना नहीं करना, वो तो पॉलिसी मैटर को देख ही लेंगे। लेकिन ये टीम बन जाएगा, मतलब MK श्रीवास्तव जो वाइस प्रेसिडेंट, उनका कहना था कि आप अनाउंस कर दीजिएगा कि जो वॉलंटियरली आगे आज इस काम के लिए, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर हम लोग को डिसाइड कर लेंगे एरिया वाइज बांट ले किसको कौन से देखनी है। हाँ, जो एक शहर के कम से कम 3 से 4 लोग इसमें शामिल हों, जो हमें सही इंफॉर्मेशन दे, ताकि हम सेंट्रलाइज उसको बना लें। नहीं हमारा तुम्हारा व्हाट्सएप में देखने बाद मैंने बात करी थी उससे, उसका ना एक्चुअली उसका लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली, ये तो हमारे लिए काम आने वाला है ना, जो लोग सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेंशनली गलत कर रहे हैं वो उनके लिए ये बात मायने नहीं रख रही। बैंक को भी पता है कि वो ओवर वैल्यूएशन, कई बार तो बैंक को जरूरत ही होती है, वो खुद ही फोर्सिबली उनसे वैसा ही वैल्यू लेना चाहते हैं। नहीं, वो देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी, और गलत के लिए तो फिर पुलिस ही होती है ना। एनीवे ठीक है, मेरे ख्याल में करना चाह रहे हैं वो करते रहे सही। मेरे ख्याल में आज डिस्कशन जो सही करना चाह रहा है वो कर रहा है, जिसको गलत करना वो गलत कर रहा है, मैंने वही वो रास्ते ढूंढ लेते हैं दूसरे। बैंकर्स भी पनिश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो भी कुछ लोग हैं सब चीज को बाईपास करते हुए काम कर रहे हैं, वैल्यूअर्स भी हैं, सब कुछ डिस्पाइट फेसिंग द प्रॉब्लम्स वो सब कुछ बाईपास करते हैं। मैनेजर्स हमारे कांटेक्ट में ऐसे मैनेजर्स हैं जिनसे हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और वो कह देते हैं ये आपके लायक वैल्यू नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है।
ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, हर तरह के लोग हर जगह पे हैं। बैंकर्स में बैंकर्स हैं, वैल्यूअर्स में वैल्यूअर्स हैं, जो हर चीजों वही है कि हम लोग अपनी तरफ से बातें रख सकते हैं, बाकी सुधार होने में बहुत टाइम लगेगा। जब तक हम पर्सनली नहीं इम्प्रूव करते हैं, एज अ पर्सनालिटी हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं है। पूछिए करनी पड़ती है। मैंने बताया ना, कानपुर का एक एतबार मुझे याद आ गया, इससे मैंने को याद दिला दिया। वो कानपुर की ब्रांच थी, एसेट दैनिक जागरण की नोएडा में है। एज पर देयर नॉर्म्स 50,000 फीस बन रही थी, मैंने रेस किया। उसके पहले 50,000 पिछले महीने ने दिया था, इस महीने ने कहा सर तो बहुत ज्यादा फीस है, 5-10 ऊपर हम देते हैं। हमने कहा भाई ये तुम्हारा अपना नॉर्म्स कहते हैं, तुम्हारी अपनी शेड्यूल ऑफ रेट्स में यही फीस बन रही है, और तुम इससे कम दोगे तो तुम्हें कोई इनाम नहीं दे देगा। सिंह सर, मैंने अभी एक वैल्यूएशन दी, बैंक ने वैल्यूएशन लेने से पहले फीस भी डिसाइड करी। नहीं वो तो दूसरे वैल्यूअर ने क्या करा, एक्चुअल बैंक के सर्कुलर के हिसाब से उसकी फीस 30,000 प्लस जीएसटी बनती है। मैंने उतने का ही बिल भेजा, रिपोर्ट बनाई। दूसरे वैल्यूअर ने सर उसका बिल भेजा 15,000 प्लस जीएसटी, और बैंक ने 15,000 प्लस जीएसटी। सर ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं अपना एग्जांपल के नाम भी बता सकता हूँ वैल्यूअर का। बैंक ऑफ इंडिया का एक वैल्यूएशन किया मैंने, एनपीए था। दूसरे वैल्यूअर का मेरे फैजाबाद वैल्यूअर फ्रंट ऑफिस, इसमें 30,000 से कम चार्ज मत करिएगा। उन्होंने कहा क्यों भाई, जो उनके नॉर्म्स क्या कहते हैं उस बैंक ऑफ इंडिया में, उनके नेगोशिएशन एक टर्म्स है। उस वैल्यूएशन फीस पे 1.5 लाख फीस बनती थी, मैंने 1 लाख रुपए चार्ज किया। उसने 40,000 चार्ज किया। बैंक ने कहा कि सर 240 ले रहा, आप 1 लाख ले रहे। हमने कहा भैया आपसे नेगोशिएट हो चुका था, मैंने बता दिया था मैं इससे कम पे काम नहीं करूंगा। चंडीगढ़ जोन का मैटर था, पानीपत में प्रॉपर्टी थी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। रिपोर्ट मैंने जब सबमिट कर दी थी तो दूसरे वैल्यूअर ने 40 दिया, मुझे 1 लाख दिया। हमने कहा उन्होंने कितना कम किया, इट इज हिज प्रेरोगेटिव, उस वैल्यूअर का है। मैं आपसे नेगोशिएट कर चुका हूँ और आपने कहा है तो मैं आई वोंट गो डाउन। सर दैट व्हाट आई एम सेइंग कि मेरा भी नेगोशिएशन हो गया था और मैंने रिपोर्ट भी सबमिट करा दी, बिल भी ऐसे क्यों कर रहे हैं? और बैंक ने, मैंने उस बैंक को लेटर भी लिखा है कि क्या कहते हैं आपने आपके साथ डिसाइड। एक्चुअली क्या होता है ना सर, ये सारी चीजें वर्बली होती है, कोई रिटन में तो कोई बैंक वर्बली भी अगर हुई तो हम फाइट करेंगे ना, वही मैं कह रहा हूँ, उसके लिए हम लड़ेंगे। मैंने उनके जो एफजीएम का कुछ चिट्ठी लिखी चंडीगढ़ एफजीएम बैंक ऑफ इंडिया को। बिल्कुल सर, मैं भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? उनका सर्कुलर ही उतनी फीस 30 होता है। एक्चुअली दूसरे वैल्यूअर ने 15 इससे ज्यादा दे नहीं सकते। कैनरा बैंक का होगा जहाँ मेरा कहना। यस सर, यस सर। कैनरा बैंक 30 मैं केसेस में मैं खुद समझ करना। वो कहते हैं, एक ने तो कह दिया साहब आपके पास एविडेंस क्या है कि आपको काम मिला। एग्जैक्टली उन्होंने हमसे यहाँ तक पूछना शुरू किया कि आपने कोई रिसीट है कि आपने सबमिट की रिपोर्ट। एग्जैक्टली सर। तो मैंने इमीडिएटली क्या कहा, किस केस में आपने रिसीट इसी केस में दी है? वैल्यूएशन को वैल्यूअर को रिसीट देते हैं आप? हैव यू एवर गिवन? अल्टीमेटली आई हैव टेकन द फीस। बल्कि मुझे वहां से उस दिन ऑफिस से एक भी केस नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अल्टीमेटली फीस ले ली। चले, मेरे ख्याल में अच्छा डिस्कशन हो गया। अभी वरुण जी, ऑफिस में आज तक मेरे पास केस नहीं आया, लेकिन मैंने लिया। एग्जैक्टली ललित, मेरे ख्याल डिस्कशन अच्छा हुआ, तो अभी वोट ऑफ थैंक्स विदा करो सब लोग। तो शुरू करें सर? हाँ। आज की मीटिंग में उपस्थित सभी वैल्यूअर्स का मैं आईवा की तरफ से धन्यवाद करता हूं सर कि आप लोगों ने समय निकाला और एक बढ़िया डिस्कशन किया सर। धन्यवाद सर। और अगली मीटिंग में हम सब फिर मिलेंगे और नए डिस्कशन के साथ। सबको ये बता दो, सभी लोग जोड़ जाए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आप लोग के लिए उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। भूपेंद्र का प्रेजेंटेशन एंड पर्सनली थैंक्स टू बीपी सिंह सर। सर भूपेंद्र साहब को आपको सर्टिफिकेट मेल पे पहुंच गई आपको? धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।